We will be starting shortly. We will be starting in 5 to 10 minutes. Stay tuned.
The craft of programming is the factoring of a set of requirements into a set of functions and data structures. On this note, I welcome everyone to day 2 of the DSA Bootcamp. Today, we have an extremely talented person with us, Mr. Ivan. He is a web developer and a competitive programmer, and a bright individual who is a 4-star coder at CodeChef, a specialist in code courses, and a winner of CodeMeNote Hackathon, head of coding at Computers Club, and president of CodeChef SGSI TS chapter. Today, we are going to talk about stacking queues and data structures. You are requested to adhere to rules and regulations to ensure the smooth flow of the session. In order to receive the completion certificate, it is mandatory to participate in the quiz and fill the feedback form. So, please take over and enhance our knowledge on these topics. So, hello everyone. Am I audible to all of you? You can just write yes in the chat box. Just cover these topics initially. If you are good at these topics, then the upcoming topics such as trees and graphs will be way much simpler for you because their implementation and their traversals get easy when you implement them with stacks and queues. So let's start with stacks first. So uh, before starting about talking about stack, we must first discuss about what is ADT. Full form of ADT is abstract data type. So what whenever we try to discuss about anything about stacks or queue or any type of data structure, we always discuss about abstract data type. Now what does it mean? It means that we only discuss about the concept. We discuss about the concept of how the stacks are used, or the what are the main operations in the stacks and what are the main operation in the queues. So whenever we discuss about stacks, we always discuss what are the concepts that are implemented in stacks. So the basic operations that are implemented in stacks are push and pop operations. So we will discuss about this. But whenever we are discussing about stack, we just have to um, only see how these things work, how the elements are added into the stacks and how the elements are removed from the stack. And implementation of stack is upon you. So whenever you are implementing a stack, it's upon you how you can implement it with arrays. You can use arrays to implement stack, or you can use linked list to implement stack. You can create links with the linked list and implement these operations. So while discussing about stack, we will only discuss how the push and pull operations will occur. And we will also discuss two ways to implement. The first one is from array implementation and the second one is from linked list implementation. So let's start with stacks first. So there are five most important operation in the stack. The first one is the initialization. So before discussing it, let's see how the stack actually looks like. So let's suppose we have a box, right? A long box. Now, if I say you to add 5 balls or 6 balls into this stack,
you can use like this. You can add first ball, you can add second ball, you can add third ball. So what you are actually doing is you are pushing the balls into the stack. So this is the first operation that we will be going to perform, right? And then if I say you to take out the elements, take out the balls, so which will be the first ball that you will take out? Let's suppose this is the first ball you added, this is the second, and this is the third ball. So since you added the first ball here, it will be at the bottom. Then you can add the second ball, then you can add the third ball. But while removing the balls, you have to consider that because you cannot access second and first ball because third ball is at the top. So whenever you are taking out the element, you will always take out the element that is present at the top. So I will first take out the element 3 from the top. After the 3 is removed, yeah. So 3 is removed and it is arrived here. Then I will take out 2, right? Then 2 will be removed. Then I will take out 1. So first 3 was removed, then 2 was removed, then 1 was removed. So the adding order will be first, second, and third, and the removing order will be third, then second, then first. Now, whatever I have discussed till now is only about abstract data types. It is only discussing about abstract data types. Why stack is called abstract data type? Because we are just discussing about the concept. So what we have discussed? We have discussed the push operation and the pop operation. Now, what is importance of is empty operation, is full operation? See, if your stack does not have any of the balls, right? And you say that you want to remove one ball. So for people like you and me, for humans, you can see that we can practically see that there are no elements in the stack and we cannot remove any element. So why are we creating this function? We are creating an isEmpty function and isFull function because the code does not know. Whenever we are writing the code, there may be chances that we are writing long codes and at certain point of time we do not remember that the stack is empty or not. So we just try to add the elements, right? Let's suppose I try to remove one element, right? I called a push operation. I have called a push operation and I said to remove one element from the stack. Okay, I don't know that stack has elements or not. So after calling a push operation, inside this push operation, we have, sorry, we have is empty operation, right? So we have is empty operation, which will check whether the stack is empty or not. So if the stack is empty, we cannot add any element, and due to this, this function will return an error. And what is the isFull operation? See, whenever you're using any stack, you either implement it with array or with linked list or any of the data structure you like. Just your operation must be fulfilled. So let's suppose we are implementing stacks using array. So we have, let's suppose we allocated 5 spaces for this array, right? So the first ball is in the stack, then the second ball is in the stack, then third, then fourth, then fifth, right? Now my box becomes full. So I have to check that if my box becomes full, then I cannot implement the push operation, right? The third operation can only be implemented when our stack is empty. If we have one element, one memory allocation, memory space free here, then we can add another element, let's suppose 6. So all these functions, the major functions are the push operations, the pop operations. So to do a valid push, we will use isFull operation to check whether we can push the elements or not. And for doing a valid pop operation, we will use an isEmpty operation. So these are the 4 important operations. And the first one is obvious that we have to define the array or the linked list for implementing this. Right? We have to create some, we have to allocate some space into it and perform operation inside it. So is this thing clear to all of you? So is this thing clear to all of you?
You can just write yes in the chat box. You can write no as well. Okay. So yeah. So let's move on to the next slide. So after this, after we have performed, we have seen all the operation collectively. Let's start with the initialization of empty stack. So to see whether we have elements in the stack or not, how many elements are there, or how many elements need to be removed, everything will be just seen by this top index, right? This you can just consider as pointer, but it is actually storing the index, right? This top value will be storing the index. Currently, we do not have any top index defined. We do not have any top value defined or size or capacity. But these are the four things which will be very important while creating a stack, right? Stack using array. So this is the array implementation of stack. And first, what we will do, first we will call the initialization function. So let's first initialize the stack. So initialization के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसको एक कैपेसिटी अलोकेट करते हैं कि हमको मान लो 10 बॉल रखने की कैपेसिटी चाहिए. सो मैं इस इनिशियलाइजेशन फंक्शन के अंदर 10 को इनपुट करूंगा. सो जब मैंने उसको इनपुट करा तो वो हमारी इनिशियल कैपेसिटी हो गई जिसको हमको स्टोर कर लेना है. नेक्स्ट हमको करना है कि उस कैपेसिटी का हमको एक अरे क्रिएट करना है, क्योंकि हम अरे से इनिशियलाइजेशन अरे से हम स्टैक ऑपरेशन को परफॉर्म करने वाले. नेक्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक टॉप की वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी. नाउ टॉप की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे इनिशियली -1 होगी. अब क्यों होगी, बिकॉज यहाँ पे हमारा इंडेक्स 0 होगा. मान लो ये 10 साइज का अरे है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे एंड होगा. सो हमारे पास जो इनिशियल एलिमेंट है उसका इंडेक्स 0 होगा, एंड जो लास्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स 9 होगा. क्यों, क्योंकि अरे हमेशा डिफाइन होता है 0 इंडेक्स से लेके 9 इंडेक्स तक. Okay, so we have defined the array, right? We have created an array of this capacity. Now we are marking top equal to -1. -1 का मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये जीरो इंडेक्स सिग्निफाई कर रहा है कि हम ये फर्स्ट एलिमेंट है स्टैक के अंदर, हम स्टैक के फर्स्ट एलिमेंट के अंदर है. ठीक है, तो -1 क्या सिग्निफाई करेगा कि हम स्टैक के पहले वाली स्कैनिंग जो कि इनवैलिड आ जाएगी, राइट. सो -1 हमारा सिग्निफाई करेगा कि स्टैक हमारा एम्प्टी है. अभी लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि इस एम्प्टी को हमको चेक करना है, तो यहीं से हमको इसको परफॉर्म करने से पहले ही पता चल गया कि जब हमारा टॉप -1 होगा, इसका मतलब क्लियर होगा कि हमारा स्टैक एम्प्टी हो जाएगा. ये चीज क्लियर है सबको? चैट बॉक्स में बस मेरे को रिप्लाई करते रहना. ओके, सो ये हमारा हो गया. इस एम्प्टी को हमने जस्ट डिस्कस करा है, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है वो भी हम देखेंगे. सो इनिशियलाइजेशन में टॉप को -1 डाल दिया, साइज को 0 डाल दिया. साइज क्या होगा, साइज एक अलग चीज होती है, कैपेसिटी इज डिफरेंट. कैपेसिटी के अंदर हम ये डिफाइन करते हैं कि हमारी साइज कितनी होगी, हम मैक्सिमम हमारे बॉक्स के अंदर कितनी बॉल्स आ सकती हैं. 10 आ सकती है, 20 आ सकती है, 30 आ सकती है, एक लिमिट तक ही जा सकती है. मेमोरी जितनी आपकी can you please hold for 1 second? Hello, am I audible? Hello, hello. Yeah, okay.
हमने इनिशियलाइजेशन को तो डिफाइन कर दिया है, हमको फाइनल वैल्यूज भी मिल गई है इनिशियलाइजेशन के बाद। सो अब हम जाते हैं स्टैक के अंदर एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए। बस आप ये समझ लो कि हम बस बॉल्स ऐड कर रहे हैं राइट से, मतलब कि ये हमारा टॉप भी हो गया, राइट। हम राइट और टॉप मतलब हम एक ही कंसिडर कर रहे हैं, एंड लेफ्ट या हमारा बॉटम हो गया, जहाँ पे हम एलिमेंट्स को नहीं, यहाँ से हम एलिमेंट्स को एक्सेस ही नहीं कर सकते। तो जो भी हमारा एक्सेस होगा वो हमारा सिर्फ और सिर्फ राइट साइड से होगा। सो राइट साइड से हमने क्या करा, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को डाला। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, हमारी फर्स्ट बॉल की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई, राइट। तो तुमने देखा कि पिछली बार हमारा यहाँ पे टॉप की वैल्यू -1 थी, हमने उसको इंक्रीमेंट करके 0 पे लिया है। अब 0 पे लाने का क्या सेंस हुआ कि जब हमने टॉप को इंक्रीज करके 0 पे लाए, तो टॉप सिग्निफाई क्या कर रहा है कि मेरे स्टैक के अंदर सबसे ऊपर कौन सी बॉल रखी हुई है, राइट। सो अगर मैंने एक एलिमेंट ऐड करा है, तो अब जो मेरी नई बॉल हुई, 5 मेरी नई बॉल है, तो बिकॉज वो मेरी नई बॉल है, तो मेरा टॉप इंक्रीमेंट होके उस पोजीशन पे आ जाएगा जहां पे मेरे को इस बॉल को स्टोर करना है। क्योंकि अभी कोई भी एलिमेंट स्टोर नहीं है स्टैक के अंदर, इसलिए 5 सबसे पहला एलिमेंट हुआ और टॉप -1 से 0 हो गया। सो 0 उसका इंडेक्स हो गया, 0 के अंदर वैल्यू हो गई 5 और साइज हो गई हमारी 1। अब ये करने के लिए हमने क्या यूज करा, एक पुश ऑपरेशन यूज करा कि मेरे को बॉल डालनी है, तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि स्टैक फुल है कि नहीं। अब जब हम स्टैक को फुल है कि नहीं ये हम बाद में देखेंगे कि ये फंक्शन कैसे इंप्लीमेंट होता है। इसमें बस हम सबसे पहले देखेंगे कि साइज कैपेसिटी के बराबर है कि नहीं। तो साइज यहाँ पे क्या है, साइज 0 है, वो आपको यहाँ पे ऊपर भी दिख रहा है, और कैपेसिटी हमारी 10 है। सो वी हैव 9 स्पेसेस अवेलेबल, राइट। 9 स्पेसेस अवेलेबल है एलिमेंट्स को डालने के लिए। तो इस फुल ऑपरेशन तो हमको बोलेगा कि सब करेक्ट है, एवरीथिंग इज ऑल गुड, सो यू कैन जस्ट मूव टू द स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर क्या होगा कि आपको टॉप को इंक्रीमेंट करना है। तो टॉप पहले कहाँ था, -1 पे था, उसके बाद हमने उसको शिफ्ट करा और नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस पे ले गए। नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस यहाँ पे क्या होगी, फर्स्ट एम्प्टी स्पेस हो गई। फर्स्ट एम्प्टी स्पेस पे आ गए और हमने उस पोजीशन को अपडेट कर दिया, राइट। हमने उस पोजीशन पे क्या करा, डेटा की वैल्यू डाल दी। तो इस पॉइंट पे हमारा क्या होगा, 5 हमारा स्टैक के अंदर आ गया, उसको पोजीशन भी एलोकेट हो गई, उस पर टॉप पॉइंटर पॉइंट भी करने लग गया, एंड उसकी वो जहाँ पे भी स्टोर्ड है उसकी वैल्यू 5 हो गई, इस स्पेस पे वैल्यू 5 हो गई। नेक्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा, साइज को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। एज यूजुअल ये साइज हमको बताएगा कि स्टैक के अंदर अभी कितनी बॉल्स है, राइट। सो ये हमारा हो गया एडिंग एलिमेंट टू द स्टैक। ये हो गया हमारा पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन के अंदर किसी को कुछ डाउट आ रहा है क्या? Just say yes or no in the chat box. Okay, so let's move on to the next slide. So यहाँ पे हमने क्या करा, स्टैक के अंदर एक एलिमेंट तो डाल दिया है, राइट। नेक्स्ट हमारा टास्क होगा कि हमको स्टैक के अंदर एक और एलिमेंट डालना है, लेट्स सपोज। सो क्या होगा, हमको अगर 8 डालना है स्टैक के अंदर, तो हम कैसे डालेंगे, सेम ऑपरेशन। टॉप हमारा यहाँ पे क्या था, 0 था इनिशियली, अब ये शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे, फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा, राइट। अब फर्स्ट इंडेक्स पे आ गया तो इनिशियल वैल्यू क्या थी टॉप की, 0, राइट। वो शिफ्ट मूव होके क्या हो गया, 1 पे आ गया। देन टॉप वैल्यू हमारी क्या थी, 5 थी, 5 मूव अपडेट होके 8 हो गया, साइज भी हमारी इंक्रीमेंट होके 2 हो गई, और कैपेसिटी में कोई भी चेंज नहीं आया। ये कैसे हुआ, हमने फिर पुश ऑपरेशन लगाया। पुश ऑपरेशन के अंदर हमने इस फुल को चेक करा, क्लियरली दिख रहा है कि ये स्टैक फुल नहीं है। देन हमने टॉप को इंक्रीमेंट करा, देन हमने टॉप को इंक्रीमेंट करके उसकी डेटा को अपडेट करा, मतलब हमने यहाँ पे इस पोजीशन पे 8 को स्टोर करवा लिया, देन हमने साइज को इंक्रीमेंट करवा लिया। सो इस तरीके से हमने 5 को भी ऐड कर लिया, और इसी तरीके से हमने 8 को भी ऐड कर दिया। नेक्स्ट हमको 9 को ऐड करना है, उसमें भी हमको सेम ऑपरेशन करना पड़ेगा।
टॉप हमारा इंक्रीमेंट हो गया, 2 पे आ गया, टॉप वैल्यू 9 हो गई, साइज हमारी 3 हो गई। सो टॉप ने कहाँ से ट्रेवर्स करा, -1 से चलते हुए उसने -1 से 0 को कवर करा, 0 से 1 को कवर करा, 1 से फिर 2 को कवर करा एंड 3 एलिमेंट्स को जाके स्टोर कर लिया, राइट। सो अब हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन आता है पॉपिंग ऑपरेशन। पॉपिंग ऑपरेशन के अंदर क्या होगा कि हमको स्टैक से एलिमेंट को निकालना है। हमने यहाँ से एग्जिट नहीं करा है, हमने इस साइड से एंट्री करी थी 9 की, 589 की, और इसी साइड से हम 9 को बाहर निकाल रहे हैं। जस्ट मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया है, राइट। तो सबसे पहले 5 गया था, फिर 8 गया था, देन 9 गया था, राइट। 9 गया था हमारा। सो सबसे पहले हमारा कौन सा एलिमेंट बाहर आएगा, जो सबसे आखिरी में गया। इसलिए स्टैक को हम क्या बोलते हैं, लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे आखिरी में जाएगा वो सबसे पहले बाहर आएगा, राइट। सो इसलिए हम इसको लास्ट इन फर्स्ट आउट बोलते हैं। सो हमारे यहाँ पे वैल्यूज में कैसे चेंजेस आए, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमको सिर्फ 2 सिंपल स्टेप देखनी है। सबसे पहले स्टेप होगा कि क्या स्टैक एम्प्टी है कि नहीं है। ये कैसे चेक करेंगे हम, मैंने पहली बताया था कि टॉप की वैल्यू अगर -1 हो गई, -1 मतलब यहाँ मतलब किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि स्टैक के अंदर एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। और अगर एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे कि ये स्टैक एम्प्टी है, और अगर ये स्टैक एम्प्टी है तो हमारा एरर प्रिंट हो जाएगा, राइट। सो हमने क्या करा, टॉप एलिमेंट हमारा 2 था, सो हमने उसको डिक्रीमेंट करके 1 कर दिया। क्योंकि हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है इसलिए हमने डिक्रीमेंट ऑपरेशन करा एंड हमने टॉप को डिक्रीमेंट कर दिया एंड साइज को डिक्रीमेंट कर दिया। टॉप हमारा 2 था, 2 से 1 पे शिफ्ट हो गया एंड हमारी साइज भी 3 से 2 हो गई, राइट। सो टॉप हमारा डिक्रीमेंट हो गया, 2 से 1 हो गया। वैल्यू जो हमारी 9 थी वो अब हमारी करंट वैल्यू नहीं रहेगी, हमारी करंट वैल्यू अब 8 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा साइज 3 से 2 हो जाएगा। सो इस ऑपरेशन के अंदर आप देखोगे कि हमने इस 9 को रिमूव ही नहीं करा। मतलब 9 अरे के अंदर तो प्रेजेंट है, 9 इज प्रेजेंट इन द अरे, बट वी हैव नॉट रिमूव दैट एलिमेंट। हमने बस टॉप को डिक्रीमेंट कर दिया है, साइज को डिक्रीमेंट कर दिया है, बट 9 अभी भी प्रेजेंट है। सो इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या हमको, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि टॉप की मदद से हम एक्सेस करेंगे सारे एलिमेंट्स को। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो टॉप से एक्सेस नहीं होगा, सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हमको टॉप से ही गो थ्रू होना पड़ेगा। इसलिए 9 के होने या नो होने से यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हो, 5 हो 4 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक हमारा टॉप यहाँ पे है। जहां पर भी टॉप रहेगा उसके राइट में सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो वो स्टैक्स में पुश किए जा चुके थे और पॉप आउट भी हो चुके हैं। सो सारे एलिमेंट्स हटाने के बाद टॉप जिस भी पोजीशन पे रहेगा वो हमारी करंट पोजीशन हो जाएगी, राइट। वो हमारा टॉप एलिमेंट हो जाएगा। सो 9 को रिमूव करने के बाद जो हमारा टॉप एलिमेंट बचेगा वो हो जाएगा 8। प्रीवियस वैल्यूज हमारी जो भी थी, हमने वो प्रीवियस वैल्यूज को हटा के फाइनल वैल्यूज आ गई हमारी। टॉप हमारा डिक्रीमेंट हो गया, टॉप वैल्यू चेंज हो गई, साइज भी हमारी डिक्रीमेंट हो गई, और इसी के साथ हमारा पॉप ऑपरेशन भी कंप्लीट हो गया। पॉप ऑपरेशन के अंदर किसी को भी कोई डाउट आ रहा है क्या? अगर डाउट नहीं आ रहा है तो फिर नो लिख दो, या तो फिर अगर आ रहा हो तो यस लिख दो। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं हम। 9 को हमने रिमूव कर दिया, अब 8 को रिमूव करने के लिए भी सेम ऑपरेशन परफॉर्म करने। हमने चेक कर लिया क्या स्टैक एम्प्टी है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि टॉप की वैल्यू -1 नहीं है। नेक्स्ट हमने चेक कर लिया कि हमने टॉप और साइज को डिक्रीमेंट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि हम हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है, इसलिए हम टॉप को डिक्रीमेंट कर सकते हैं। और इसका मतलब हो गया कि 8 अब एक्सेसिबल नहीं है, दैट मीन्स कि 8 पॉप आउट हो गया है, राइट। अब जब हम 8 को निकालेंगे तो इसमें मैंने एक ऑपरेशन और आता है इंपॉर्टेंट,
कि हमको इस टॉप को एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक टॉप का फंक्शन बना देंगे कि गेट टॉप करके, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, गेट टॉप करके एक फंक्शन बना देंगे जो कि रिटर्न करेगा टॉप के ऊपर जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न करेगा, राइट। अगर टॉप -1 हुआ तो वो एरर रिटर्न करेगा, और अगर टॉप -1 नहीं हुआ तो जो भी टॉप एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे 5 है तो वो उसको 5 को रिटर्न करेगा, राइट। और जैसे अगर उसने 5 को रिटर्न, तो 5 को रिमूव नहीं करेगा, वो सिर्फ टॉप पे जो भी वैल्यू है वो उसको रिटर्न करेगा। तो जैसे आपको 8, 5 या पिछले पिछले में हमारे पास 5, 8, 9 थे, तो उनको एक्सेस करने के लिए आप इस टॉप फंक्शन को भी क्रिएट कर सकते हैं जो सिर्फ टॉप की वैल्यू को रिटर्न करेगा, राइट। अब हमारे पास क्या हो गया, 8 को हमने रिमूव कर दिया वापस, हमने चेक कर लिया कि 8 रिमूव हो सकता है कि नहीं, स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। उसके साथ साथ हमने टॉप को डिक्रीमेंट कर दिया एंड साइज को डिक्रीमेंट कर दिया, तो 8 हमारा रिमूव हो चुका है। टॉप की वैल्यू हमारी 0 हो गई, इंडेक्स 0 हो गया, और उसकी वैल्यू 5 हो गई, टॉप टॉप एलिमेंट हमारा 5 हो गया, साइज 1 हो गई, और कैपेसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। कैपेसिटी में कब चेंज आएगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अंटिल दिस पॉइंट कैपेसिटी में कोई चेंज नहीं है। देन हमने सिमिलरली 5 को डिक्रीमेंट करा, 5 को रिमूव कर दिया हमने, स्टैक में से हमने 5 को भी रिमूव कर दिया, और हमारे पास अब बचा टॉप इक्वल टू -1। इसका मतलब क्या हुआ, टॉप -1 का मतलब हुआ कि स्टैक एम्प्टी हो गया, क्योंकि इनिशियली जब हमने देखा था तो स्टैक को हमने इसी तरीके से इनिशियलाइज करा था, टॉप -1, राइट। तो अगर ये प्रॉपर्टी वापस आती है, हम घूम फिर के वापस टॉप इक्वल टू -1 पे आते हैं, सो इसका मतलब ये हो गया कि हमने जितने भी एलिमेंट स्टैक के अंदर इनपुट करे थे, जो भी एलिमेंट स्टैक के अंदर डाले थे, वो सारे एलिमेंट स्टैक के बाहर आ गए। तो इनपुट आउटपुट सारा हमने किससे करा अभी तक, सिर्फ टॉप से करा। साइज और कैपेसिटी तो सिर्फ सिग्निफाई कर रही थी कि एलिमेंट्स कितने हैं और कितने एलिमेंट्स हम स्टोर कर सकते हैं, बट जितना भी पूरा गेम है वो पूरा टॉप की मदद से अपन ने खेला है, राइट। सो इस एलिमेंट को भी पॉप कर दिया हमने, टॉप -1 हो गया। टॉप अभी -1 नहीं हुआ है, टॉप की वैल्यू 0 है, सो इस एम्प्टी में जाएगा, चेक करेगा, 0 नहीं है तो वो नीचे जाके रिटर्न फॉल्स कर देगा, राइट। ये दोनों ऑपरेशंस को कंसिडर नहीं करना, ये यहाँ पे गलत लिखे हुए हैं, बाकी ये चीज आपको फॉल्स रिटर्न कर देनी है, ठीक है। और वैसे ही हमारी जो इनिशियल वैल्यूज है वो हमारी इनवैलिड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इंडेक्स हमारा -1 है, तो वहां पे कोई भी वैल्यू अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो वैल्यू को हम -1 लिख देंगे, क्योंकि वो टॉप को हम -1 लिख देंगे और टॉप की वैल्यू इनवैलिड हो जाएगी, साइज हमारी 0 हो जाएगी और कैपेसिटी हमारी 10 हो जाएगी, राइट। सो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमको अब चेक करना है एज केसेस। हम कोडिंग में देखते हैं एज केसेस का मतलब होता है वैसे पॉइंट जहां पे आपका कोड गलती करेगा, राइट। मिस्टेक्स जो निकालते हैं ना, तो आपको टीचर बन के आपको वो मिस्टेक्स निकालनी पड़ेगी। स्टैक के अंदर आप इंप्लीमेंट करोगे, आपने बहुत अच्छा इंप्लीमेंट करा है ना, बहुत अच्छी तरीके से ऑप्टिमल सॉल्यूशन दिया मान लो, बट अगर आपके कोड में एरर आ गया ना, तो एरर की वजह से आपका पूरा कोड क्रैश कर सकता है। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी चीज इंप्लीमेंट करो वो एकदम बिल्कुल सही होनी चाहिए, वो सारे केसेस को कवर करे, तभी वो सॉल्यूशन सही कहलाएगा, करेक्ट तभी कहलाएगा। एक्यूरेसी आपकी बेस्ट होनी चाहिए, ऑलमोस्ट आपको सारे जो भी चीज आप इम्प्लीमेंट करते हो वो हमेशा अप टू मार्क होना चाहिए, राइट। सो इसमें हम क्या देखेंगे कि व्हाट इफ अरे बिकम्स फुल। ये एक एज केस हो गया कि अगर हमारा स्टैक का साइज फिल हो गया, स्टैक के अंदर अब कोई एलिमेंट डालने के लिए जगह ही नहीं बची, Sir, you are muted. हेलो। Yes, sir. Now you're audible. सो कब से मेरी आवाज नहीं आ रही? So for last 2 minutes. ओके।
So in the last 2 minutes I have discussed that what if the array becomes full, ये एक हमारी कंडीशन है जो हमको चेक करनी पड़ेगी. Why? Because ये हमारा एक एज केस हो गया. यहाँ पे अगर हमारा स्टैक फिल हो गया एंड उसके बाद किसी ने बोला कि इसके अंदर 7 ऐड करो, क्योंकि हमारे पास कोई मेमोरी स्पेस अवेलेबल ही नहीं है, तो हम कोई नया एलिमेंट ऐड राइट. सो अब हम नेक्स्ट चीज पे मूव करते हैं कि स्टैक को लिंक लिस्ट के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे. स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के दो तरीके अभी हम देखने वाले. फर्स्ट हो गया अरे के थ्रू हो गया, सेकेंड हो गया लिंक लिस्ट के थ्रू. ठीक है. सो अरे के जितने भी अभी हमने इम्प्लीमेंटेशन देखे उसमें किसी को कोई डाउट आ रहा है क्या? अगर डाउट आ रहा हो तो अपन उस स्लाइड पे भी मूव कर लेंगे. किसी को डाउट आ रहा है पहले तो आप बता दो. एनीवन? ओके. सो अब हम मूव करते हैं लिंक लिस्ट के ऊपर. राइट.
कि स्टैक को लिंक लिस्ट के थ्रू हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। सो लिंक लिस्ट में क्या होता है, आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि लिंक लिस्ट के अंदर हम एक नोड को डिफाइन करते हैं, राइट। नोड मतलब हो गया कि लिंक लिस्ट को अगर बनाना हो तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, डेटा होगा आपका, और ये होगा आपका नेक्स्ट पॉइंटर। नेक्स्ट पॉइंटर क्या करेगा, ये नेक्स्ट वैल्यू को, जो भी नेक्स्ट लिंक नोड होगा, ये उसको पॉइंट करेगा, और डेटा हमारा क्या होगा, जो वैल्यू हमको स्टोर करनी है। सो इसको भी तुम बॉल्स की तरह ही कंसिडर करो कि ये भी बॉल्स है, राइट। ये बॉल है मान लो। सो अगर आपको लिंक लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट करना है तो सबसे पहले आपको चाहिए 4 वैल्यूज एज यूजुअल। सबसे पहले आपको नोड डिफाइन करना पड़ेगा कि नोड के अंदर क्या क्या होगा। नोड के अंदर होगा एक डेटा, जो कि हमारा जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, ये डेटा स्टोर करने के लिए। और नेक्स्ट हमारा हो गया नल, मतलब कि ये नोड जब भी हम क्रिएट करेंगे उसकी नेक्स्ट वैल्यू होगी नल, मतलब वो नेक्स्ट किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा, राइट। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टॉप वैल्यू यहाँ पे भी सेम टॉप वैल्यू आएगी, सेम साइज आएगी, राइट। कैपेसिटी हमने डिफाइन नहीं करी है, क्यों? क्योंकि लिंक लिस्ट क्या होता है, लिंक लिस्ट होता है हीप के अंदर स्टोर। जब भी हम मेमोरी में देखते हैं, सो ये जो सारे लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स है ना, जैसे हम नोड डिफाइन करते हैं, पॉइंटर डिफाइन करते हैं, सो ये पॉइंटर्स कहाँ स्टोर होते हैं, यहाँ पे स्टोर होते हैं हीप्स के अंदर। यहाँ पे आपको मेमोरी एलोकेट की जाएगी इन नोड्स के लिए। ये जो नोड्स होते हैं ये हीप्स के अंदर मेमोरी एलोकेट होगी, और जिसकी वजह से क्या होगा कि हीप की साइज जब तक फुल नहीं हो जाती, आपकी हीप मतलब क्या होगी, आपकी मेमोरी की साइज जब तक फुल नहीं हो जाती, आपका हीप जब तक फुल नहीं हो जाता, तब तक आप लिंक लिस्ट मतलब नए एलिमेंट्स डाल सकते हो, राइट। तो इसमें कैपेसिटी जैसा कुछ नहीं हुआ। कैपेसिटी आपकी मेमोरी हो गई कि मेमोरी जितनी होगी उतनी कैपेसिटी होगी। बट अरे के अंदर क्या था कि हमको पहले से एक प्री डिफाइंड कैपेसिटी लेके चलना पड़ रहा था। प्री डिफाइंड कैपेसिटी की वजह से वो कैपेसिटी फुल हो रही थी, और उसकी वजह से हमको बार बार कॉपी करना पड़ रहा था एलिमेंट्स को। पूरे पूरे एलिमेंट्स को कॉपी करके न्यू अरे के अंदर डालना पड़ रहा था, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन हो रही थी। बट यहाँ पे न्यू एलिमेंट्स को डालने की मतलब कॉपी करने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि स्टैक हमारा कभी फुल ही नहीं होगा। वो होगा तो वो मेमोरी एक्सीड हो जाएगी। उस कंडीशन में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास स्पेस ही अवेलेबल नहीं है। सो स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम सबसे पहले उसको पुश ऑपरेशन को ट्राई करते हैं कि हमारा जो वैल्यू है मान लो 2, 2 को हमें ऐड करना है। 2 को ऐड करने के लिए हमने क्या करा, एक नया नोड बनाया है टेम्प करके। टेम्प मतलब बोलो कि आप अलग से एक स्पेस एलोकेट करी आपने, तो वहां पे आपने बोला कि तू 2 मिनट यहाँ पे रुक जा, राइट। तब तक अपन टॉप की वैल्यू हमारे पास अगर पहले होगी तो टॉप अभी भी हमारा मान लो नल है। तो हमने बोला कि नए एलिमेंट को बोला कि तू बाहर 2 मिनट आराम कर, और टेम्प क्या स्टोर करेगा, वैल्यू स्टोर करेगा, एंड वो करेगा पॉइंट टू टॉप। पॉइंट टू टॉप का मतलब क्या हो गया कि वो यहाँ से पॉइंट करेगा जो भी टॉप मोस्ट एलिमेंट है, राइट। टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या है हमारा, अभी नल है। कोई भी वैल्यू टॉप पे नहीं है तो सबसे पहले ये किसको पॉइंट करेगा, टेम्प नल को पॉइंट करेगा, राइट। टेम्प विल पॉइंट टू नल। उसके बाद हम क्या करेंगे, टॉप इक्वल टू टेम्प। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो टेम्प हमने एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाया था, उसको हमने बोला कि तुम टॉप को पॉइंट करो, और उसके बाद टेम्प इक्वल टू टॉप कर दो। मतलब अब टॉप की वैल्यू क्या हो गई, 10 इसकी साइज हो गई, राइट। और ये हो गया हमारा टॉप। सो ये चीज हमने क्यों करी है, ये आपको जब नेक्स्ट एलिमेंट्स ऐड करेंगे ना, तब क्लियर होगा कि लिंक लिस्ट के थ्रू अपन कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं इस चीज को, राइट। हमने क्या करा, टॉप को पॉइंट करवा दिया किससे, अभी टॉप की इनिशियल वैल्यू क्या हो गई, जो टेम का जो एड्रेस था ना, वही अब टॉप का एड्रेस हो गया है। एंड टॉप की वैल्यू अब कितनी हो गई है, 2, जो कि हमको स्टोर करवानी थी, और साइज हमारा इंक्रीमेंट हो गया। नेक्स्ट ऑपरेशन में अपने को और क्लियर होगा कि ये सारी चीजें हो क्या रही है, ठीक है। सो नेक्स्ट में हमने क्या करा, प्रीवियस वाले में हमारे पास क्या था, ये टॉप हमारा एलिमेंट था, राइट। अब लिंक लिस्ट को अब जब भी इंप्लीमेंट एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो उसका जो भी फर्स्ट नोड होता है,
उसी के थ्रू एक्सेस करते हैं, राइट। लिंक लिस्ट को एक्सेस करने के लिए उसका जो फर्स्ट नोड होता है उसी को एक्सेस करते हैं, एंड देन उसके बाद हम ट्रेवर्स करते हैं टू द नेक्स्ट लिंक लिस्ट, फिर टू द नेक्स्ट लिंक लिस्ट। ऐसे करते हैं, हम ट्रेवर्स करते रहते हैं जब तक हमको उसके आगे कोई भी एलिमेंट नहीं मिले। मतलब हमारा नेक्स्ट पॉइंटर जब नल हो जाएगा तब हमको लिंक लिस्ट में कोई भी और एलिमेंट नहीं मिलेगा, राइट। सो अभी हमारा टॉप क्या था, ये था। नेक्स्ट वैल्यू क्या थी, हमारी नल थी। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम नया टेम्प बनाएंगे। नई वैल्यू को ऐड करने के लिए हम नया टेम्प बनाएंगे। हमको 1 को ऐड करना है, तो 1 को ऐड करने के लिए क्या करेंगे, हम वापस से नया नोड बनाएंगे। ये हमारा नया नोड बन गया, राइट। नाउ टेम्प विल स्टोर द वैल्यू एंड विल पॉइंट टू टॉप। नया नोड बन गया। अब वो इनिशियल जो टॉप एलिमेंट है जो कि ये था, राइट, ये ट्राई करेगा कि ये इसको पॉइंट करे। तो उसके बाद क्या, टेम्प हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो गया, टॉप हमारा फर्स्ट एलिमेंट था, एंड टेम्प ने उसको पॉइंट करा। तो अब ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया और ये हटके सेकेंड एलिमेंट हो गया, राइट। नाउ फर्स्ट एलिमेंट इज पॉइंटिंग टू सेकेंड एलिमेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि लिंक लिस्ट के अंदर जो भी आपका फर्स्ट नोड है दैट इज योर टॉप एलिमेंट। सबसे पहले आपने क्या करा, स्टोर, 2 स्टोर करा था, 2 सबसे पहले ऐड करा था, देन आपने 1 ऐड करा। अब जब भी आपको रिमूव करना है, आपको बस लिंक लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट रिमूव करना है। आपने सिर्फ ये फर्स्ट एलिमेंट रिमूव करना है और टॉप को इंक्रीमेंट कर देना है जब भी आपको एलिमेंट्स को रिमूव करना है। और एडिंग के वक्त क्या करना है, नया नोड बनाना है, उसके अंदर आपको एक वैल्यू स्टोर करनी है और उसको पॉइंट करवा देना है टॉप से, राइट। सो अब ये किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा। और टॉप एलिमेंट हमारा क्या हो गया, ये हो गया, और ये हमारी नई मेमोरी हो गई। सो नए एलिमेंट की जो मेमोरी है वो हमने टॉप में स्टोर कर ली, उसकी वैल्यू स्टोर कर दी, और उसका साइज इंक्रीज करके हमने 1 से 2 कर दिया। ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो गया एंड ये हमारा सेकेंड एलिमेंट हो गया। अब कोई भी नया एलिमेंट ऐड करना है तो मैं कहाँ करूंगा, उसको यहाँ पे ऐड करूंगा, नया नोड बनाऊंगा। जैसे मान लो 5 को ऐड करना है तो मैं 5 को कैसे ऐड करूंगा, 5 यहाँ रख दिया। मान लो इसका मेमोरी हो गई 80, राइट। इसको बोल दिया कि यार तू इसको जाके 70 को पॉइंट कर, तो उसने 70 को पॉइंट कर दिया। अब बोला कि यार तू तो टेम्प है, तो तू ये वैल्यू ले ले, क्योंकि अभी तू सबसे पहला एलिमेंट हो गया, तो तू टॉप मोस्ट एलिमेंट हो जा एंड इसको हटा दे। सो ये कुछ इस तरीके से लिंक बन जाएगी, और इसी तरीके से हम यहाँ पे एलिमेंट ऐड करते जाएंगे, राइट। एक के बाद एक एलिमेंट्स को ऐड करते जाएंगे। सो इसकी मदद से क्या होगा कि हमको जब भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो टॉप एलिमेंट जो भी हमारा होगा हम उसको डायरेक्टली एक्सेस कर लेंगे, राइट। टॉप पे जाना है हमको, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी जो भी वैल्यू होगी वो हमको रिटर्न कर देनी है। सो ये हो गया हमारा पुश ऑपरेशन, और इसमें हमने इनिशियल वैल्यूज को चेंज करके फाइनल वैल्यूज में साइज इंक्रीमेंट कर दी और टॉप का एड्रेस चेंज कर दिया जहाँ पे वो पॉइंट कर रहा था, ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, पुश ऑपरेशन में किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ डाउट आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो बता दो चैट बॉक्स में। ओके, सो किसी को भी डाउट्स नहीं है तो हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। मान लो हमने मल्टीपल एलिमेंट्स डाल दिए। सो इस टैग को देख के ये पता चल रहा है कि इसके अंदर जो हमारा ये एलिमेंट है ये प्रीवियस टॉप था एंड दिस इज अवर नेक्स्ट टॉप वैल्यू। सो जैसे मैंने बोला कि आपने फर्स्ट वैल्यू डाल दी, फिर 1, सबसे पहले आपने 1 को डाला, फिर 2 को डाला मान लो, फिर 3 को डाला, फिर 32 को डाला, फिर 5 को डाला, तो वो इस तरीके से स्टोर होंगे। और आपको अगर एलिमेंट्स को निकालना है तो आप सबसे पहले 5 को हटाओगे,
फिर 32 को हटाओगे और टॉप को यहाँ पे इंक्रीज कर दोगे, फिर 3 को हटाओगे, फिर 2 को हटाओगे, एंड सो ऑन आप मूव करते रहोगे, राइट। और सिमिलरली आपकी वैल्यूज भी चेंज होती रहेगी। अब एलिमेंट को हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये एलिमेंट यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, ये आपकी टॉप वैल्यू थी। आप क्या करोगे, अगर टॉप नल है तो आपको यहाँ पे कोई इस एम्प्टी फंक्शन नहीं लगाना, आपको बस ये चेक करना है कि अगर टॉप किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा, दैट मीन्स कि आपके स्टैक के अंदर कोई भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इससे टॉप इक्वल टू नल हो गया। देन हम क्या करेंगे कि टॉप को इंक्रीमेंट करके नेक्स्ट पॉइंट करवा देंगे। सो ये 11 से अब 11 यहाँ ये फर्स्ट एलिमेंट 11 पे पॉइंट कर रहा था, तो हमने टॉप को शिफ्ट करके यहाँ पे शिफ्ट कर दिया एंड हमने ये लिंक तोड़ दी। तो टॉप हमारा इंक्रीमेंट होके सेकेंड एलिमेंट पे आ गया, फर्स्ट एलिमेंट था, ये सेकेंड था, एंड सो ऑन। हम टॉप को मूव करते जाएंगे और एलिमेंट्स को डिलीट करते जाएंगे। फिर ये एलिमेंट डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, ये भी डिलीट हो जाएगा, एंड एट द एंड हमारा टॉप यहाँ पे पहुंच जाएगा। एंड फिर इसको भी डिलीट कर देंगे तो हमारी इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाएगा जहाँ पे टॉप की वैल्यू नल थी। सो इस तरीके से अपन पॉप ऑपरेशन को भी परफॉर्म करेंगे। टॉप को पहले चेक करेंगे कि अगर नल है वो तो एरर रिटर्न कर दे, नहीं तो फिर हम टॉप को नेक्स्ट पॉइंटर जो भी है, नेक्स्ट वैल्यू जो भी है टॉप पे, उस पे शिफ्ट कर देंगे, उस साइज को भी डिक्रीमेंट कर देंगे। और ये अगर कहीं पर भी मेमोरी में अलोकेट हो रहा होगा तो इससे हमको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्सेस तो हमको टॉप एलिमेंट से ही करना है। सो ये कहीं पर भी हो, इससे हमको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो इस तरीके से अपन पॉप ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। अब हमारे दो इम्प्लीमेंटेशन क्यों होते हैं स्टैक के अंदर, उसके लिए दो चीजें होती है, एक तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जो हमको चेक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपका कोड ऑप्टिमाइज नहीं होगा तो आपको मिलियंस ऑफ अमाउंट ऑफ डेटा को अगर ऐड करना है, पुश करना है, डिलीट करना है, तो उसके लिए आपको बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए आप चाहोगे कि आपकी जो भी ऑपरेशन है वो बहुत एफिशिएंटली एग्जीक्यूट हो। तो अरे के अंदर जब हम पुश करेंगे तो हमको सिर्फ एक एलिमेंट को ऐड करना है और टॉप की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देना था, इसलिए उसकी कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। और ओ ऑफ एन हो गया जब अरे फुल हो गया। अरे जब फुल हो गया तो हमको एक नया अरे बनाना पड़ गया था एंड उसको कॉपी करना पड़ गया था। एंड जब भी हम एलिमेंट को निकालेंगे तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टॉप को डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, इसलिए अरे की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 हो गई। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई हमारी, ऑफ 1 हो गई। क्यों ऑफ 1 हो गई, क्योंकि इन जनरल हमको क्या करना पड़ेगा कि अगर हमने एक अरे लिया है तो हमको नया नया एलिमेंट ऐड करना है, तो मान लो 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया। सो जो एक्स्ट्रा स्पेस है, हमको एक्स्ट्रा स्पेस कितनी लगी, बस एक टॉप को स्टोर करने के लिए लगी, इसलिए हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 हो गई। बट लिंक लिस्ट में क्या हो रहा था, लिंक लिस्ट में तो ये इश्यू ही नहीं आ रहा था, क्योंकि लिंक लिस्ट कभी फुल नहीं होगा, इसलिए पुश ऑपरेशन भी ऑफ 1 होगा एंड पॉप ऑपरेशन भी ऑफ 1 होगा। बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमको पॉइंटर्स भी स्टोर करना पड़ेगा, लिंक लिस्ट के अंदर आपको डेटा भी स्टोर करना पड़ेगा एंड सेम टाइम पे आपको नेक्स्ट पॉइंटर भी स्टोर करना पड़ेगा। इसलिए आपको n डेटा के लिए आपको n नेक्स्ट पॉइंटर को स्टोर करना पड़ेगा, इसलिए आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ऑफ n हो जाएगी, राइट। तो ये था हमारा स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन। सो सारे इम्प्लीमेंटेशन हमने देख लिए हैं। सो इसमें किसी को कोई डाउट आ रहा है, और अगर क्लियर है तो फिर यस लिख देना। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लिंक लिस्ट जब भी हमको कैलकुलेट करनी होती है तो हम एक चीज को सोचते हैं कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स है। मान लो 5 एलिमेंट्स भी हो तो हम उसको इस तरीके से पॉइंट करवाएंगे, राइट, एंड सो ऑन। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हमको देखना पड़ेगा कि हमको अगर 5 एलिमेंट स्टोर करने हैं
तो हमको 5 की स्पेस तो लगने ही वाली है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट अरे के अंदर हमको जैसे 5 स्पेस लगी 5 एलिमेंट्स के लिए, वो ऑब्वियस सी बात है। बट इसके अलावा हमको कितनी स्पेस लगी वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम एक पॉइंटर का यूज कर रहे हैं ये सारी चेन्स को कनेक्ट करने के लिए। जैसे ट्रेन्स को कनेक्ट करने के लिए हम लिंक्स का यूज करते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लिंक्स क्रिएट कर रहे हैं और उस लिंक्स की हमारे पास कोई स्पेस होगी। तो अगर हमारे पास n एलिमेंट्स है तो हमको कितनी स्पेस, 5 एलिमेंट्स है तो हमको 5 पॉइंटर्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। 5 पॉइंटर्स की जरूरत पड़ेगी तो हमको कितनी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, हमारी ऑफ वाई हो जाएगी। तो जनरलाइज करने के लिए हम बोलेंगे कि अगर हमको n एलिमेंट्स ऐड करने हैं तो हमको n एक्स्ट्रा पॉइंटर्स लगेंगे या n एक्स्ट्रा स्पेस लगेगी, इसलिए हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n हो जाएगी। क्लियर हुई क्या? ओके, सो अब हम देखेंगे कि इस टैग का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। सो मैं एक सेकेंड स्क्रीन चेंज कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। सो क्योंकि हमारा लाइक 1 आवर का टाइम भी कंप्लीट होने वाला है, सो ये कर लेना। ओके, सो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमको दिया है कि हमारे पास 3 पेयर्स दे के रखे हैं। ये पेयर हो गया ओपनिंग ब्रैकेट्स का, ये इसको हम बोलेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसको सर्कुलर ब्रैकेट्स, एंड इसको बोलेंगे हम कर्ली ब्रैकेट्स, राइट। सो हमको ये 3 ब्रैकेट्स दे के रखे हैं एंड हमको ये बताना है कि इससे बनने वाला एक्सप्रेशन जो कि ये होगा, जैसे मान लो ये एग्जाम्पल हो गया, हमको रिटर्न करना है कि ये ट्रू होगा कि नहीं, ये एक्सप्रेशन वैलिड है कि नहीं। वैलिड होने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन दे के रखी है उन्होंने, कि नंबर ऑफ ओपनिंग पैरेंथेसिस, जितने भी ये हो गया हमारा ओपनिंग पैरेंथेसिस, राइट, ये भी ओपनिंग हो गया, एंड ये हो गया हमारा क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ये भी क्लोजिंग पैरेंथेसिस हो गया। सो ऑन हमको एलिमेंट्स दे के रखे हैं। सो जितने भी ओपनिंग पैरेंथेसिस है हर एक टाइप के लिए, जितनी भी बार स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हुआ है उसको क्लोज होना पड़ेगा। सेम केस फॉर सारे अलग सारे दूसरे ब्रैकेट्स के लिए भी सेम केस होगा। तो ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस ये दोनों चेक करने हैं। उस सेकेंड चीज होगा कि जो पैरेंथेसिस पहले ओपन हुआ है वो क्लोज, जो सबसे आखिरी में ओपन हुआ है सबसे पहले क्लोज होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो ये ओपन हुआ तो मैं चाहता हूं कि ये सबसे पहले क्लोज्ड हो। एक और केस ले लेते हैं, ये ओपन हुआ फिर ये ओपन हुआ, सर्कुलर ब्रैकेट, तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज्ड हो उसके बाद ये एक्सप्रेशन क्लोज्ड हो। अब इसको अगर मेन एग्जांपल देखे तो ऐसा कुछ होगा कि 5 + 2, राइट, माइनस का अगर तुम माइनस करोगे 6 × 3 से, तो इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे होगा? सबसे पहले तुम 6 और 3 को रिजॉल्व करोगे, उसके बाद किसको रिजॉल्व करोगे, 5 और 2 को रिजॉल्व करोगे, और उसके बाद तुम्हारा ये पूरा ब्रैकेट रिजॉल्व हो चुका होगा। तो इसका मतलब हुआ कि अंदर के सारे एलिमेंट्स जब हमने रिजॉल्व कर दिए, अंदर के
सारे एक्सप्रेशन रिजॉल्व करती है, उसके बाद हमारे बाहर का एक्सप्रेशन वैलिड हो जाएगा। ये बॉक्स, ये स्क्वायर ब्रैकेट तभी आएगा जब अंदर के सारे ब्रैकेट्स क्लोज हो चुके होंगे, जो भी ओपन हुए थे वो क्लोज हो चुके होंगे, राइट। सो इसके अंदर के ये ब्रैकेट भी पहले क्लोज होना चाहिए, उसके बाद फिर ये ब्रैकेट क्लोज होगा। सो क्वेश्चन में हमको ये करने को बोला है। सो हम क्या करेंगे, मान लो हमने ये सारी एलिमेंट्स को लेफ्ट टू राइट एक्सेस करने की कोशिश करी, ये पूरी स्ट्रिंग को हम लेफ्ट टू राइट एक्सेस करने की कोशिश करेंगे और सबसे पहले देखेंगे कि क्या आया, एक ओपनिंग ब्रैकेट आया। तो हम देखेंगे कि जितने भी ब्रैकेट्स ओपन हैं उतने ब्रैकेट्स क्लोज होने चाहिए, और लास्ट ओपन ब्रैकेट को सबसे पहले हमको क्लोज करना पड़ेगा। तो ये क्या बोल रहा है, लास्ट ओपन ब्रैकेट शुड बी क्लोज फर्स्ट। तो ये लास्ट जो भी ओपन होगा वो सबसे पहले क्लोज होगा, उसका मतलब हो गया कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। इस तरीके से इसका कुछ लॉजिक जम रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर हम क्या यूज करने वाले हैं, स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन हम करने वाले हैं। सो यहाँ पे इस टैग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्टोर करें कि जो भी ओपनिंग ब्रैकेट्स है वो हम यहाँ पे स्टोर करते जाएंगे, और सारे ओपनिंग ब्रैकेट्स को रिजॉल्व करना हमारा टास्क होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी पहला ओपनिंग ब्रैकेट है हमने उसको डाल दिया, राइट। फिर सेकेंड ओपनिंग ब्रैकेट आया, इसको भी डाल दिया हमने स्टैक में। थर्ड ओपनिंग ब्रैकेट, थर्ड क्लोजिंग ब्रैकेट हो गया। तो क्लोजिंग ब्रैकेट क्या देखेगा, क्लोजिंग ब्रैकेट हम तो स्टैक में डाल नहीं सकते, तो वो चेक करेगा कि जो टॉप पे एलिमेंट है जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ, सबसे आखिरी जो भी ब्रैकेट रिजॉल्व नहीं हुआ है, क्या वो मेरे पेयर से मैच कर रहा है। पेयर क्या हो गया, या तो ये पेयर हो गया, या तो ये, या तो ये। सो इसमें अपन देखेंगे ये तो पेयर से मैच कर रहा है, राइट। सो हम क्या करेंगे, इसको पॉप आउट कर देंगे। सो हमने क्या करा, एलिमेंट को पॉप आउट कर दिया, ये एलिमेंट देख लिया और हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को रिजॉल्व कर दिया, राइट। अब नेक्स्ट हमको क्या देखना है कि अब ये अंदर के एलिमेंट सारे रिजॉल्व हो गए ना, तो ये दोनों तो रिजॉल्व हो गए हमारे, तो अब उसको स्टैक में रखने के कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लोजिंग ब्रैकेट। क्लोजिंग ब्रैकेट किसका आया, ये स्क्वायर क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि स्टैक के अंदर जो टॉप एलिमेंट है वो एक ओपनिंग ब्रैकेट है जो इससे पेयर बना रहे हैं। सो इसलिए हम इसको भी स्टैक से रिमूव कर देंगे, ठीक है। 1 सेकेंड। हाँ, तो हमने इस एलिमेंट को भी रिमूव कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरी एक्सप्रेशन है ये हमारी रिजॉल्व हो गई है। अगर ये एक्सप्रेशन ना भी होती तो भी इस एक्सप्रेशन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक्सप्रेशन जब पूरी रिजॉल्व हो चुकी है तो इस एक्सप्रेशन का कोई भी ऑर्डर में हम इसको रिजॉल्व करेंगे, इसको चेक करेंगे। अगर इसका आंसर ट्रू है तो इसका आंसर भले ही फॉल्स हो या ट्रू हो, इसका आंसर तो हमेशा ट्रू होगा, और पूरे सॉल्यूशन भी हमारा पूरा ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि ये चीज रिजॉल्व हो चुकी है और इसके होने ना होने से अभी हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। तो अब हम क्या देखेंगे कि ये चीज हमारी पूरी रिजॉल्व हो गई है और इस टैग के अंदर भी अवेलेबल नहीं है। सो अब हम कहाँ जाएंगे, हम नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे। इसको चेक करा हमने, कर्ली ब्रैकेट्स को हमने क्या करा, स्टैक के अंदर डाल दिया। एक ओपनिंग ब्रैकेट हो गया, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट से हमने उसको चेक करा, चेक करा कि दोनों एक पेयर बना रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे हमको देखने को मिला कि ये दोनों पेयर बनाने वाले हैं, इसलिए हमने दोनों को रिमूव कर दिया। जो ओपनिंग ब्रैकेट था उसको हमने स्टैक से बाहर कर दिया, राइट।
सो हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करेंगे, यहाँ पे वापस कर्ली ब्रेसेस को डालेंगे, इसके बाद क्या डालेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स डालेंगे, फिर सर्कुलर ब्रैकेट्स डालेंगे। सो ये दोनों भी हमने डाल लिए। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट डिसॉल्व होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर उसके बाहर के एलिमेंट्स होंगे। तो ये सबसे ऊपर ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट है, और ये क्या हो गया हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट। सो क्योंकि ये सबसे लास्ट में आया है और ये पेयर भी मैच कर रहे हैं, इसलिए ये भी हमारा पूरा रिजॉल्व हो चुका है, ये भी पूरा रिजॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली हम स्टैक ऑपरेशन की मदद से इसको भी रिजॉल्व कर लेंगे एंड इसको भी रिजॉल्व कर लेंगे। सो एट द एंड हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा। ये पूरा पेयर भी रिजॉल्व हो गया, ये पूरा पेयर भी रिजॉल्व हो गया, राइट। ये दोनों पेयर रिजॉल्व, ये सारे पेयर रिजॉल्व हो गए। उसके बाद हमको बाहर के जो भी ब्रैकेट्स है उनको रिजॉल्व करना है। सो इन दोनों को चेक कर लिया हमने कि ये जो नेक्स्ट एलिमेंट है ये क्योंकि एक क्लोजिंग ब्रैकेट है और ये हमारा एक ओपनिंग ब्रैकेट है जो इससे मैच कर रहा है, क्योंकि अंदर कोई इसके ऊपर कोई एलिमेंट्स नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर के सारे जो एक्सप्रेशन है वो रिजॉल्व हो चुके हैं एंड अब मेरे पास सिर्फ यही एक्सप्रेशन बाकी है। तो ये दोनों ब्रैकेट्स जब बाकी है तो इसको हम रिमूव कर लेंगे, राइट। ये एलिमेंट सारे रिमूव हो गए। एट द एंड हम ऐसा इसको भी रिमूव कर देंगे एंड एट द लास्ट इसको भी रिमूव कर देंगे। सो ये सारे एलिमेंट्स यहाँ से भी रिमूव हो गए। सबसे पहले ये पूरा हुआ, ये भी हो गया एंड ये भी हो गया। सो क्योंकि यहाँ पे भी ट्रू आ रहा है, यहाँ पे भी ट्रू आ रहा है, यहाँ पे भी ट्रू आ रहा है, तीनों रिजॉल्व हो गए एंड फाइनली हमारे स्टैक के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं बचा, इसलिए हम बोलेंगे कि ये एक्सप्रेशन वैलिड है, राइट। बट अब इनवैलिड एक्सप्रेशन भी तो होते होंगे कुछ। ये जो सारे ऑपरेशन परफॉर्म करे ये तो वैलिड एक्सप्रेशन के लिए थे, इनवैलिड के लिए देखेंगे तो क्या होगा। मान लो ये हो गया, तो इसमें बस हम इसमें वैल्यूज डालते रहेंगे जैसे बोला है, और ये जैसे क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा हम चेक करेंगे, ये तो बराबर है ही नहीं, ये क्लोजिंग ब्रैकेट एंड ये ओपनिंग ब्रैकेट सेम पेयर के नहीं है, इसलिए ये हो गया हमारा एरर। ठीक है, ऑपरेशन में हमारी सबसे पहले एरर आ गई कि ये ब्रैकेट्स मैच नहीं करें। दूसरा हो गया कि मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया कि दूसरी एक्सप्रेशन लिख दी मैंने। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, हम स्टैक के अंदर वैल्यू डालेंगे। सबसे पहले ये डाल दिया ये ब्रैकेट, फिर ये ओपनिंग ब्रैकेट डाल दिया, फिर ये कर्ली ब्रैकेट डाल दिया। अब तीनों ब्रैकेट्स क्योंकि हमारे स्टैक के अंदर, जब हमने सारे एलिमेंट्स को चेक कर लिया बट अभी भी हमारा एम्प्टी नहीं हुआ, मतलब क्या हुआ कि हमारे ओपनिंग रिजॉल्व नहीं हुए। बिकॉज हमारे ओपनिंग ब्रैकेट्स रिजॉल्व नहीं हुए तो हमको क्या रिटर्न करना पड़ेगा, एरर। और ये क्या हो जाएगी, हमारी सेकेंड कंडीशन हो जाएगी। ये हो गए दो कंडीशन जहां पे हमको एरर आ सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट केस क्या हो गया कि हमने एक ओपनिंग ब्रैकेट लिखा और फिर तीन क्लोजिंग ब्रैकेट बना दिए। जैसे हमने तीन क्लोजिंग ब्रैकेट बना दिए, अब ये कंडीशन क्या सबसे पहले पॉइंट पे फेल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया बिफोर एन ओपनिंग ब्रैकेट। एज यू ऑल नो कि ओपनिंग ब्रैकेट हमेशा लेफ्ट में आएगा एंड क्लोजिंग राइट में आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर एक क्लोजिंग ब्रैकेट आता है तो एक ओपनिंग ब्रैकेट उससे पहले होना बहुत जरूरी है। और ये स्टैक हमको सिग्निफाई करेगा कि हमारे जो करंट ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट है ये, इससे पहले कोई भी ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आया।
ये कैसे चेक करेंगे हम? इस एम्प्टी ऑपरेशन से। अगर स्टैक इज एम्प्टी, अगर स्टैक इज एम्प्टी, राइट, अगर स्टैक एम्प्टी है तो हमको क्या करना पड़ेगा? एरर रिटर्न करना पड़ेगा। और ये हमारा हो गया तीसरा केस, राइट। सो ये हमने 3 केसेस डिस्कस कर लिए। और ये जो फॉल्स एक्सप्रेशन इन्होंने दे के रखा है वो कुछ इस तरीके से दे के रखा है। सबसे पहले ये जाएगा ओपनिंग ब्रैकेट, देन हमारा सर्कुलर ब्रैकेट जाएगा, देन फिर ये आ जाएगा एंड ये पेयर एरर क्रिएट करेगा। इसकी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। सो ये स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन सबको समझ में आया कि स्टैक को क्वेश्चंस में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। ये अभी हमने सिर्फ लॉजिक डिस्कस करा है, और इसको इम्प्लीमेंट करना है तो वो आप जाके एक बार ट्राई करना कि इसको अपनी लैंग्वेज में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। किसी भी लैंग्वेज में करो, कोई इशू नहीं है। सो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? सो लाइक अभी ब्रेक लेना चाहिए कि नहीं 5 मिनट्स का? अगर आप लोग बोलो तो ब्रेक ले लेते, नहीं तो फिर कंटिन्यू करते। अगर ब्रेक चाहिए तो फिर यस लिख दो, नहीं तो फिर नो लिख देना। अगर एक्टिव हो तो रिप्लाई कर दो। रिप्लाई करने में तो कोई इशू नहीं है। ओके, सो 5 मिनट्स का ब्रेक ले लेते। विल दैट बी ऑल राइट? अगर हम 7:20 से वापस कंटिन्यू करें तो? ओके, सो तब तक अगर किसी को कुछ भी डाउट्स आ रहे हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो वो पूछ सकते हैं। डाउट सेशन एंड में रखने की जगह एक बार स्टैक कंप्लीट हो गया है हमारा, सो आप चाहो तो रेस्ट कर सकते हो या तो आप डाउट पूछ सकते हो।
एंड जैसे ही हमने स्टैक का इम्प्लीमेंट करा है ना, क्यूज का भी सेम होगा, बट उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आ जाएंगे। अब क्यू क्या होता है, इसको भी हम देख लेते हैं। क्यू मतलब हो गया कि आपने स्टैक के अंदर हमने बॉल्स का एग्जांपल लिया था ना, यहाँ पे अपन पीपल्स का एग्जांपल लेंगे कि बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए, ठीक है, लाइन में लगे हुए हैं एंड यहाँ पे टिकट्स मिल रही है, राइट, मूवी की टिकट्स मिल रही है। तो जो सबसे पहले जाएगा, मान लो फर्स्ट एलिमेंट गया, फर्स्ट पर्सन गया, फिर सेकंड पर्सन गया, फिर थर्ड पर्सन गया, जैसे ही ये लोग जाएंगे इनको टिकट्स मिल जाएगी। जो सबसे पहले जाएगा, अगर वन सबसे पहले जाएगा तो उसको टिकट मिल जाएगी, देन फिर टू को मिलेगी, देन फिर थ्री को मिलेगी। सो जिस ऑर्डर के अंदर वो क्यू के अंदर गए, लाइन मतलब हो गया कि क्यू हो गया, राइट। एंड सबसे पहले अगर वन गया क्यू के अंदर, सो सबसे पहले उसको टिकट मिलेगी, उसके बाद किसको मिलेगी, टू को मिलेगी, उसके बाद किसको मिलेगी, थ्री को मिलेगी। सो इसी तरीके से क्यू इम्प्लीमेंट होता है। क्यू को आप मान सकते हो कि आप जैसे बॉल्स डाल रहे थे, तो वन, टू, थ्री। अब मान लो बॉल्स को डालने का तरीका ये हो गया कि आप ऊपर से डालोगे और बॉल्स को नीचे से निकालोगे। मतलब मान लो यहाँ पे छेद हो गया, राइट। सो बॉक्स में छेद हो गया, तो जैसे आप ऊपर से डालोगे सबसे पहले बॉल ये बाहर आएगी, वन आएगी, फिर टू आएगी, फिर थ्री आएगी। सो ये हो गया क्यूज। क्यूज के अंदर भी ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। इसका मतलब हो गया कि हम इसकी सिर्फ थ्योरी को चेक करेंगे, थ्योरी को समझेंगे, और इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है वो आपके ऊपर है। आप उसको अरेज से कर सकते हो या तो लिंक लिस्ट से कर सकते हो, राइट। सो क्यूज में हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्या आया हमारे इनिशियलाइजेशन। जैसे स्टैक में होता है कि हमको एक एम्प्टी स्पेस अलोकेट करनी है। जैसे हमने इस बार हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग अरे से ही करेंगे, वैसे भी जैसे पिछली बार करा था। इनिशियलाइज करेंगे एक एम्प्टी क्यू, उसमें हम एक अरे को क्रिएट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे थ्री साइज अरे को क्रिएट करा है। इसी तरह हम इस फुल ऑपरेशन भी चेक करेंगे क्या हमारा क्यू फुल है कि नहीं। एन क्यू मतलब हो गया कि हम क्यू के अंदर एलिमेंट्स डालेंगे, एडिंग डेटा। जैसे हमने पुश एलिमेंट को इम्प्लीमेंट करा था ना स्टैक के अंदर, सिमिलरली हम क्यू के अंदर एन क्यू ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। इन द सेम वे हम डी क्यू ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे, रिमूविंग द टॉप डेटा फ्रॉम द बॉटम ऑफ द क्यू। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा। इसका मतलब हुआ कि अगर वन सबसे पहले आया, फिर टू आया, ठीक है, क्यू के अंदर, तो सबसे पहले वन आया तो वन बाहर आएगा। इसका मतलब हो गया जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले बाहर जाएगा। एंड डी क्यू का मतलब वही हो गया। एंड इस एम्प्टी भी चेक करेंगे कि अगर क्यू एम्प्टी है तो उसमें से हम कोई भी एलिमेंट बाहर नहीं निकाल सकते। सो क्यू और स्टैक ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस उनका जो स्ट्रक्चर है, कॉन्सेप्ट हो गया। जैसे ट्राइंगल का कैसे कॉन्सेप्ट होता है कि ट्राइंगल को डिफाइन करने के लिए हम बोलते हैं कि यार इसकी दो साइड्स बड़ी होनी चाहिए तीसरी साइड से, और इसके पास तीन साइड्स होनी चाहिए। उसके बाद कैसा भी तुम बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ या सॉरी राइट एंगल बनाओ, या फिर ऐसा नॉर्मल ट्रायंगल बना दो, किसी भी तरीके से बना दो, किसी भी तरीके से ट्रायंगल को इम्प्लीमेंट करो, बट उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। सिमिलर केस होगा स्टैक और क्यू के अंदर भी। तो स्टैक के अंदर हमने क्या करा, इनिशियलाइज कर दिया क्यू। क्यू के अंदर हमने क्या करा, एक अरे को इनिशियलाइज कर दिया। अरे की हमने क्या ले ली, कैपेसिटी ले ली, फिर उसकी साइज देख ली कितने एलिमेंट्स है उसके अंदर, बैक वैल्यू डिफाइन कर दी और फ्रंट वैल्यू डिफाइन कर दी। फ्रंट और बैक क्यों चाहिए हमको, फ्रंट बताएगा कि सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है क्यू के अंदर, और बैक बताएगा कि सबसे आखिरी एलिमेंट कौन सा है क्यू के अंदर। तीन एलिमेंट्स है, वन टू थ्री, तो फ्रंट विल पॉइंट टू वन कि वो सबसे पहला एलिमेंट है जो बाहर होने वाला है, और थ्री मतलब हो गया कि ये सबसे आखिरी एलिमेंट है जो आया है क्यू के अंदर। ठीक है, इसको अपन देखेंगे। तो इनिशियलाइजेशन में हमने साइज इनिशियलाइज कर दी, हमने अरे बना लिया उस साइज का, फ्रंट की वैल्यू -1 रख दी और बैक की वैल्यू -1 रख दी, राइट। -1 का एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि -1 का मतलब है कि वो कहीं पर भी पॉइंट नहीं कर रहा, और अरे की जो भी साइज है, 10 साइज है अगर अरे की, और जीरो इंडेक्स यहाँ पे है, तो -1 सिग्निफाई करेगा कि अभी अरे के अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। सो ये उसकी फाइनल वैल्यू होगी, फ्रंट -1, बैक -1, साइज 0, कैपेसिटी 10 हो गई। ये हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन। नेक्स्ट हम कहते हैं कि क्यू के अंदर एलिमेंट डालना है। सो क्यू के अंदर एलिमेंट डालने के लिए हम क्या चेक करेंगे कि फ्रंट -1 है कि नहीं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि एलिमेंट में हम
इस फुल चेक करेंगे कि क्या हम एनक्यू जब करेंगे, जो कि पुश जैसा हो गया, एनक्यू जब करेंगे तो क्या स्टैक क्या अरे के अंदर सारे एलिमेंट्स फिल तो नहीं होगा? क्या 10 के 10 जो भी हमारे पास मेमोरी अवेलेबल है अरे के अंदर, क्या वो कंप्लीटली फिल तो नहीं हो गई? ये हमको एनक्यू ऑपरेशन की मदद से चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू सी, हमको चेक करने पड़ेगी कंडीशन की फ्रंट -1 है और बैक -1 है कि नहीं है। इससे क्या सिग्निफाई होगा? क्योंकि हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो सबसे पहले फ्रंट -1 को पॉइंट कर रहा है, तो फ्रंट को कहीं कहीं पर तो पॉइंट करना पड़ेगा ना, बैक को भी कहीं पे पॉइंट करना पड़ेगा। तो वो लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएंगे, फ्रंट भी आ जाएगा और बैक भी आ जाएगा। मान लो हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट स्टोर हो जाते हैं, राइट, ये हमारा फ्रंट हो गया, ये हमारा बैक हो गया। तो इस टाइम पे अगर हम एलिमेंट को ऐड करते, नया नया एलिमेंट ऐड करते, तो यहाँ पे क्या हो जाता, 6 हो जाता। तो हमको क्या करना पड़ता, सिर्फ बैक को इंक्रीज करना पड़ता, फ्रंट को चेंज करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पहला एलिमेंट तो अवेलेबल ही है। क्योंकि 4 एलिमेंट्स हो गए, 3 से अगर हम 4 पे जा रहे हैं एलिमेंट्स में, तो फ्रंट को तो कोई चेंज होगा नहीं। बट इनिशियली फ्रंट -1 पे, इसलिए हमको फ्रंट और बैक दोनों को इंक्रीज करना पड़ेगा, और नहीं तो हमको सिर्फ बैक को इंक्रीज करना पड़ेगा, साइज को भी। ये साइज हमको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, ये एक बार चेक कर लेना। तो यहाँ पे हमको साइज को भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा और बैक को भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। फ्रंट -1 से क्या हो गया, 0 हो गया, बैक की भी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। फर्स्ट इंडेक्स पे दोनों पॉइंट कर रहे हैं, एंड साइज भी उनकी इंक्रीज हो गई, और कैपेसिटी भी हमारी कितनी सेम, टू कैपेसिटी भी हमारी सेम रहेगी। अभी चेंजेस तो कुछ होंगे नहीं, क्योंकि हमारा स्टैक में अभी भी बहुत सारी मेमोरी बाकी है, नो एलिमेंट्स हम अभी भी डाल सकते हैं। सो ये हो गया एडिंग एलिमेंट टू द क्यू। इसके बाद हमने एक और एलिमेंट डाल दिया, 8 डाल दिया, राइट। इसके लिए अब क्या करेंगे, अब से बैक को इंक्रीज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई है और ये कंडीशन ट्रू हो गई। क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो हम 5 के बाद 8 को ऐड करेंगे, तो ये बैक एलिमेंट हो गया ना। 8 हमारा सबसे आखिरी एलिमेंट था जो आया, और 5 हमारा सबसे पहला एलिमेंट हो गया। तो फ्रंट की वैल्यू हमने चेंज करी क्या? बिल्कुल भी नहीं। बैक की वैल्यू हमारी चेंज हो गई, इंक्रीमेंट हो गई। साइज क्या हो गया हमारा, 2 हो गया, 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, एंड कैपेसिटी में कोई भी चेंज नहीं आया। नेक्स्ट हम चेक करेंगे, वापस एक और एलिमेंट डालेंगे, 9 को भी सिमिलरली ऐड करेंगे और बैक को इंक्रीमेंट कर देंगे, राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एक एलिमेंट को रिमूव करना है, मान लो। तो हमने फ्रंट को डिफाइन ही इसलिए किया था, ताकि फ्रंट पे जो एलिमेंट है उसको रिमूव करके हम इसको इंक्रीमेंट कर देंगे। तो 5 को हमने जब रिमूव करा, तो हमने बस पहले चेक करा कि स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। अपने को क्लियरली दिख रहा है कि स्टैक एम्प्टी नहीं है। तो हमने क्या चेक करा, क्या फ्रंट और बैक बराबर है कि नहीं, ये भी चेक करा। ये भी अभी तक नहीं हुआ है। तो हम क्या कर देंगे, सिर्फ फ्रंट को इंक्रीज करेंगे, बाकी कंडीशन भी चेक करेंगे। बट अगर नॉर्मली हमारा अरे में ट्रेवर्सल हो रहा है, तो फ्रंट एलिमेंट जो भी होगा, अगर हम उसको रिमूव करा, तो हमको बस फ्रंट को सिंपली इंक्रीमेंट कर देना है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, फ्रंट की वैल्यू चेंज हो गई, बैक की वैल्यू चेंज नहीं हुई। क्यों चेंज नहीं हुई? क्योंकि उससे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। अगर मेरे पास 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, और ये मेरा फ्रंट है, ये मेरा बैक है, तो 5 को रिमूव करूंगा तो फ्रंट को इंक्रीज कर दूंगा मैं। फिर 6 को रिमूव करूंगा तो फ्रंट को इंक्रीज करके यहाँ पे ले आऊंगा। फिर इसको रिमूव करूंगा तो इसके बाद मैं यहाँ पे फ्रंट को ले आऊंगा। फिर इस कंडीशन में क्या होगा वो अपन आगे जाके देखेंगे। सो ये हो गया कि एलिमेंट में से अपन अरे में से एलिमेंट को हटाएंगे, या फिर बोल दो कि क्यू के अंदर से हम एक डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। 5 को बाहर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये सारी कंडीशन को चेक करना पड़ेगा डीक्यू ऑपरेशन की मदद से। अब मान लो एक और एलिमेंट को ऐड करना है, तो सिंपली क्या हो गया, बैक को हमको मूव करके नेक्स्ट मेमोरी पे एलोकेट करना है, और उसकी वैल्यू यहाँ पे डाल देनी है। 10 हुआ तो 10 डाल देना है। ठीक है, सो यहाँ पे हम वैल्यू को भी डाल देंगे, ये मैंने लास्ट स्लाइड में नहीं लिखा था।
बट हम बैक के अंदर वैल्यू डाल देंगे। सो बैक हमारा यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे हो गया। अब और अगर एलिमेंट्स डालने हो तो वो सिमिलरली नेक्स्ट मेमोरी पे अलोकेट होते जाएंगे, बैक इंक्रीज होता जाएगा, वो वैल्यूज भी सारी चेंज होती जाएगी। ठीक है, अब फ्रंट में से रिमूव करना है तो सिमिलर केस है कि हमको फ्रंट को भी इंक्रीमेंट कर देना है, और फ्रंट से एलिमेंट हमारा रिमूव हो गया तो हमारे 2 एलिमेंट रिमूव हो गए। उसमें कोई भी स्टोर हो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सारे एलिमेंट्स किससे एक्सेस कर रहे हैं, एक तो फ्रंट हो गया और एक तो बैक हो गया, राइट। सो फ्रंट एंड बैक के थ्रू हम सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे। एंड एक और एलिमेंट को रिमूव कर दिया तो हमारा फ्रंट इंक्रीज हो गया, यहाँ पे आ गया, right, and front and back are pointing to the same element. That means कि element in the array we have only one element, right. So ये अगर front equal to back हो गया तो हमको ये कंडीशन चेक करनी है। अब जब हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट बाकी है तो हम क्या करेंगे, 9 को तो अभी हमने रिमूव कर दिया, उसके बाद ये कंडीशन आई। सो अब अगर हम 2 को रिमूव करना चाहें, लेट सपोज मेरे को 2 को रिमूव करना है, तो क्या होगा, अगर मैंने फ्रंट को गलती से इंक्रीमेंट कर दिया तो बैक आ जाएगा, उसके बाद आएगा फ्रंट। तो फ्रंट कभी भी बैक के आगे तो हो नहीं सकता, आपका सबसे पहला एलिमेंट सबसे आखिरी एलिमेंट के बाद तो आएगा नहीं। तो ये कंडीशन ना हो इसलिए हमने ये इफ कंडीशन लगाई, और फ्रंट को -1 लिख दिया और बैक को क्या लिख दिया, -1। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों यहाँ पे आ जाएंगे और ये एलिमेंट भी हट जाएगा। कैसे हटेगा एलिमेंट, ये दोनों, ये 2 भी हट जाएगा और फ्रंट और बैक वापस आ गए। इसका मतलब क्या हो गया, ये सेम कंडीशन हो गई। ये जो फाइनल वैल्यूज आई ना 2 को हटाने के बाद, ये वैल्यूज ये सिग्निफाई करती है कि पूरा क्यू में हमने सारे ऑपरेशन करे, जो भी तामझाम करा, क्यू के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे वो रिमूव हो गए और वापस हमारे पास क्या आ गया, फ्रंट आ गया और बैक आ गया, पूरा अरे हमारा खाली हो गया है, ये सारे एलिमेंट्स रिमूव हो चुके हैं। तो जो हमारे हमने इनिशियली डिफाइन करा था अरे को, सेम टू सेम हमारा अरे वापस बन चुका है, राइट। ये फ्रंट है, ठीक है, तो इसको अब करेक्ट कर लेना तुम, मैं ही कर दूंगा। सो इस तरीके से हम एलिमेंट्स को रिमूव कर देंगे, ठीक है। और ये कंडीशन हो गई कि फ्रंट और बैक हो गया, बट इसके बाद अगर हमने देखा कि फ्रंट एंड बैक दोनों -1 पे है, और अब अगर हमने कोई एलिमेंट को हटाने की कोशिश करी तो ये इस एम्प्टी वाला फंक्शन एरर रिटर्न कर देगा। क्यों, इस वाली, क्योंकि हमारा फ्रंट -1 हो गया, बैक -1 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको क्या करना पड़ेगा, फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा, ट्रू रिटर्न करना पड़ेगा। इसमें आई थिंक थोड़ा सा एरर है। तो अगर हमारा फ्रंट एंड बैक -1 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम कोई भी एलिमेंट अरे के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, तो हम उसको अरे से बाहर कैसे निकालेंगे, आई मीन क्यू से बाहर कैसे निकालेंगे। इसलिए इस एम्प्टी कंडीशन में हम ये चीज चेक करेंगे। ऑलराइट, जो भी थोड़े बहुत एरर्स है वो बाद में मैं स्लाइड में रिजॉल्व भी कर दूंगा। व्हाट इफ वी हैव ऑल एलिमेंट्स फिल्ड इन दिस अरे। अब हमारा बैक मान लो लास्ट में पहुंच गया, फ्रंट हमारा पहले है, अब हम कोई और एलिमेंट तो डाल नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इस फुल कंडीशन को चेक करेंगे। इस फुल में हम क्या चेक करेंगे कि बैक +1 इक्वल टू कैपेसिटी तो नहीं हो गया। कैपेसिटी कितनी थी हमारी, 10 थी। बैक की अभी वैल्यू कितनी है, 9 है, तो 9 + 1 अगर 10 हो गया, डेट मीन्स कि हम बैक हमारा एंड पॉइंट पे पहुंच गया है, और यहाँ पे कोई भी नया एलिमेंट ऐड करने के लिए हमारे पास कोई भी मेमोरी अवेलेबल ही नहीं है। सो जब कोई भी मेमोरी अवेलेबल नहीं है हमारे पास, सो ये ऑपरेशन हो गया हमारा खत्म। मतलब क्यू के अंदर हम कोई भी एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते, बट अगर हम ऐड नहीं कर सकते तो क्या हुआ, हम नया अरे तो बना सकते जैसे स्टैक में बनाया था। तो सेम हम डबल साइज का अरे बनाएंगे जिसमें 10 एलिमेंट्स होंगे, 10 के बाद यहाँ एलिमेंट्स होंगे मोर, 10 मोर एलिमेंट्स होंगे, राइट। ये जो पूरा अरे है वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, फ्रंट फ्रंट में ही रहेगा, बैक बैक में ही रहेगा,
और फिर हमको पुश करने एलिमेंट्स तो बैक को इंक्रीज करते जाऊं, और अगर रिमूव करना है तो फ्रंट को फिर इंक्रीज करते जाऊं, और अगर फिर से फुल वाली कंडीशन हो गई तो फिर से डबल कर देना, राइट। सो इसी तरीके से हम ये भी चेक कर लेंगे इसमें। सिमिलरली स्टैक में भी जैसा होता है कि हम डबल करके वैल्यूज को कॉपी कर लेंगे, सो क्यू के अंदर भी सेम ऑपरेशन परफॉर्म होता है इस फुल कंडीशन में। इसके बाद हम देखेंगे कि क्यूज से हमने बहुत कुछ हमको फायदा क्यूज को अरे से इंप्लीमेंट करने का फायदा बहुत सारा था, बट एक कंडीशन ऐसी भी तो आ सकती है कि फ्रंट यहाँ पे पहुंच गया एंड बैक यहाँ पे पहुंच गया। अब बैक तो आगे नहीं जा सकता, बट मेरे पास तो मेमोरी अवेलेबल है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं एक और मेमोरी बना लूँ डबल साइज की, ये 10 का है, ये 10 का है, तो हम क्या करेंगे 20 साइज का बना लेंगे। बट क्या उससे फायदा होगा क्या? फायदा तो होगा, हम एलिमेंट्स डाल सकते हैं, बट ये जो एम्प्टी स्पेस है इसका हमने यूटिलाइजेशन नहीं करा। मतलब इस अरे को बनाने का बना तो दिया मैंने, बट इतनी पूरी स्पेस खाली है, राइट। मैंने सिर्फ 5 एलिमेंट्स तो करे हैं, फिर भी ये अरे के अंदर अभी इतनी पावर नहीं है कि जो एक्स्ट्रा मेमोरी है उसको भी यूज कर सके। तो इसके लिए क्या लगता है क्या करना चाहिए अपने को? अगर 5 एलिमेंट्स आगे है तो ऐसा करे तो कि ये सारे एलिमेंट्स 5 यहाँ पे है, तो बाकी जो 6th एलिमेंट है वो मैं यहाँ से बनना चालू कर दूँ तो कितना बढ़िया होगा। हम इस पूरे अरे को यूटिलाइज कर सकते हैं फिर एज अ क्यू। देखते हैं उसमें क्या होगा। सो हम इसको कैसे कंसीडर करेंगे? ये 0 हो गया, ये फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकेंड, ये थर्ड, इसको फोर्थ, और ये फिफ्थ हो गया। हम इसको इस तरीके से कंसिडर करेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट हो गया हमारा, जो भी एलिमेंट फ्रंट में प्रेजेंट है वो फर्स्ट हो गया, जो बैक में प्रेजेंट है वो लास्ट हो गया। कॉन्सेप्ट वही है, बस दोनों को रखने का तरीका अलग है। मतलब अरे के अंदर वैल्यू स्टोर करने का तरीका अलग हो गया। बस हमने क्या करा, फ्रंट को वहीं रखा, बैक को हमने बोला कि बैक तुम और एलिमेंट्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हो स्टार्टिंग से। सो बैक यहाँ पे कैसे आएगा, यहाँ से पूरा घूम के। तो हम ये कंडीशन करेंगे कि बैक को जब भी इंक्रीमेंट करेंगे तो बैक कुछ इस तरीके से होगा, बैक इक्वल टू बैक प्लस 1 रिमाइंडर सी। सी मतलब होगी हमारी कैपेसिटी। मतलब बैक की वैल्यू अगर मान लो हमारी 9 थी, राइट, ये हमारा 9th इंडेक्स था मान लो। सो 9 प्लस 1 परसेंटाइल 10 कितना हो गया? 0। तो हमारी बैक की वैल्यू कितनी हो गई? 0। 0 मतलब क्या हो गया, हम फर्स्ट इंडेक्स पे आ गए। और अगर हमने यहाँ पे 9 की जगह 5 लिखा होता तो क्या आती बैक की वैल्यू? 6 आती। और अगर 6 लिखा होता तो 7 आती, 7 तो 8, 8 तो 9, 9 होती तो फिर 0 हो जाती। मतलब क्या हो गया कि हम पूरा ट्रेवर्स करके ऐसे मूव कर करके हम पूरा घूम के वापस से यहीं पर ही आ रहे हैं। तो हमने पूरे अरे का फायदा उठाया, हर एक मेमोरी को यूज करा, किसी को भी नहीं छोड़ा। इसका मतलब हो गया ये क्या चीज हो गई कि जो घूम के वापस आना हो गया, इसको क्या बोलेंगे अपन? सर्कुलर क्यू। सो क्यू से बेटर क्या होता है? सर्कुलर क्यू। क्यों? क्योंकि ये स्पेस ऑप्टिमाइज है। स्पेस ऑप्टिमाइज मतलब कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भले ही कुछ भी हो, बट वर्स्ट केस में ये पूरी स्पेस को यूज करेगा। वर्स्ट केस तो बेस्ट केस हो सब में, बट नॉर्मल क्यू में हम कुछ स्पेस छोड़ देंगे जो कि यूज नहीं होगी, फर्दर यूज नहीं कर सकते हम उसको। ठीक है, तो सर्कुलर क्यू का ये एडवांटेज हो गया। अब हमने एक और एलिमेंट डालना है तो हमने 8 डाल दिया, एक और एलिमेंट डालना है तो बैक को इंक्रीज कर दिया। फिर एक कंडीशन आएगी जो हमको चेक करनी पड़ेगी, अगर क्यू सर्कुलर क्यू यूज करा है तो कोई एज केसेस भी होंगे। सो ये है हमारा केस कि जब बैक प्लस 1 इक्वल टू फ्रंट हो गया तो हमको एरर रिटर्न करना है। एरर मतलब क्या हो गया कि हम इसके अंदर एक भी और एलिमेंट नहीं डाल सकते। अगर मैंने 11 डालने की कोशिश करी तो वो क्या करेगा, वो 10 को रिप्लेस कर देगा, जबकि 10 अभी तक पॉप आउट भी नहीं हुआ है। इसलिए बैक प्लस 1 इक्वल टू फ्रंट कंडीशन हमको चेक करनी ही पड़ेगी, राइट। तो जब भी हम सर्कुलर क्यू का
सर्कुलर क्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, ये एक्स्ट्रा कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, और हर बार हमको इसी से पता पड़ेगा कि अरे कंप्लीटली फिल्ड है कि नहीं। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम कि आप अगर अरे फुल है फिर भी अपन एलिमेंट्स तो निकाल सकते हैं ना उसमें से। तो फ्रंट को इंक्रीमेंट करेंगे, 10 को हटा दिया, फिर 3 को हटाएंगे, फिर 7 को, फिर 2 को, फिर 6 को, फिर फ्रंट को भी सिमिलर फैशन में हम इंक्रीमेंट करेंगे ताकि वो घूम के वापस यहाँ पे आ जाए और 9 8 2 6 4 को भी रिमूव कर दें। राइट, अब सबको रिमूव कर दिया उसने, 10 को हटा दिया, 3 को हटा दिया, 7 2 6 9 8 2 6 सबको हटा दिया, वापस कहाँ पे पहुंच गया वो, एक एलिमेंट पे। अब एक एलिमेंट पे पहुंच गया तो नेक्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, फ्रंट आगे आ जाएगा। अब ये तो हो नहीं सकता क्योंकि बैक हमारे यहाँ पे है, सो फ्रंट हमारा मतलब फर्स्ट एलिमेंट कभी भी लास्ट एलिमेंट के आगे तो हो नहीं सकता। तो इसके बाद क्या करेंगे, 4 को हटा देंगे और फ्रंट और बैक को इनिशियल पोजीशन पे ले आएंगे, और क्या हो जाएगा, अरे हमारा बन जाएगा एम्प्टी, एम्प्टी हो जाएगा अरे। तो हम क्या करेंगे, क्यू को वापस इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मोर एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम सर्कुलर क्यू में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन, क्यू के अंदर थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करेंगे तो हम उसको सर्कुलर क्यू बना सकते हैं, और उससे हम पूरी स्पेस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगेन हम सेम पोजीशन पे पहुंच जाएंगे जहां पे थे, फ्रंट इक्वल टू -1 एंड बैक इक्वल टू -1। सो इन सारी कंडीशन को इम्प्लीमेंट करने के बाद हम लिंक लिस्ट में देखेंगे कि कैसे इम्प्लीमेंट होता है क्यू। कोई नई बात नहीं, सेम चीज होगी, हम टेम्प को क्रिएट करेंगे। ठीक है, टेम्प को बोलेंगे कि वो सबसे पहले किसको पॉइंट करने लग जाए, फ्रंट एलिमेंट को, क्योंकि कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो फ्रंट और बैक दोनों में हम क्या स्टोर करवा लेंगे, टेम्प। फ्रंट क्या हो गया, टेम्प के बराबर हो गया, जो नया हमने स्पेस एलोकेट करी थी उसमें वैल्यू डाली, अब ये हमारी करंट वैल्यू हो गई, यहाँ पे 2 आएगा। 1 सेकेंड। हाँ, सो आई एम सॉरी, इस कंडीशन में ये हो रहा है कि हमने पहले एक लिंक लिस्ट को डिफाइन कर दिया, वो फर्स्ट एलिमेंट हमारा डल चुका है। राइट, सेकेंड एलिमेंट को डालने के लिए हम क्या करेंगे, इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे, एक टेम्प वेरिएबल बना लेंगे, उसको बोलेंगे कि तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाओ, और ये बैक को बोलेंगे कि बैक इंक्रीमेंट हो जाए यहाँ पे। कैसे होगा ये, ऐसे, ये जो फ्रंट वाला पॉइंटर है ये पॉइंट करने लग जाएगा इस वाले एलिमेंट को, और बैक हमारा इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होके वो यहाँ पे आ जाएगा। राइट, सब हमने फ्रंट, फ्रंट वाली वैल्यू किसको पॉइंट करने लग जाएगी, बैक को पॉइंट करने लग जाएगी। राइट, और हमारे पास दो एलिमेंट हो गए, एक फ्रंट हो गया, एक बैक हो गया, दोनों का एक्सेस है हमारे पास। बैक को रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको हटा देंगे हम और पीछे आ जाएंगे इस वाले एलिमेंट के ऊपर। तो ट्रैवर्स करके हमको बस ये बैक तक पहुंचना पड़ेगा और इस एलिमेंट को रिमूव कर देना पड़ेगा। ठीक है, एंड फिर हम ये ऑपरेशन को देख लेंगे। फ्रंट, फ्रंट और बैक हमने डिफाइन कर दिए, इसके बाद हम वैल्यूज और ऐड करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि बैक हमारा शिफ्ट हो होके ये नया एलिमेंट ऐड कर दिया, ये नया एलिमेंट ऐड कर दिया, ये नया एलिमेंट ऐड कर दिया, जैसे इंग्लिश में आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, उसी तरीके से अपन नए एलिमेंट को जैसे ऐड करते वैसे ही ऐड करना है। और ऐसा करते करते हम लिंक लिस्ट के एंड पॉइंट पे पहुंच जाएंगे और सारे एलिमेंट्स हमने ऐड कर दिए। क्योंकि लिंक लिस्ट के अंदर जैसे बताया था मैंने कि एक मेमोरी में आप कितना भी स्टोर कर सकते हो, सो मेमोरी का इश्यू कभी नहीं आएगा इसमें, और इसलिए आपको कैपेसिटी कभी भी डिफाइन नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये लिंक लिस्ट की मदद से अपन ने क्यू को इम्प्लीमेंट कर लिया, और यहाँ पे हमने देख लिया कि अगर फर्स्ट एलिमेंट को निकालना है तो फ्रंट को क्या करेंगे, वैसे ही जैसे टॉप को करा था, फ्रंट को आगे वाले एलिमेंट से पॉइंट करवा देंगे। राइट, फ्रंट यहाँ से मूव होके यहाँ पे हो जाएगा, और इसकी जो लिंक है हम इसको ब्रेक कर देंगे, और फिर ये हमारा हो गया नया क्यू हो गया ये हमारा। ठीक है, इसी तरह से हम एलिमेंट को हटाते जाएंगे,
और एक एक करके एलिमेंट्स को अपन बाहर करते जाएंगे और ये लिंक्स को ब्रेक करते रहेंगे, राइट। फिर लास्ट में हमारे पास ये एलिमेंट्स बच जाएंगे, फिर ये फ्रंट फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा एंड देन बैक सेकेंड एलिमेंट को पॉइंट करने लग जाएगा, ठीक है। सो इसी तरीके से लिंक लिस्ट में हमारे इम्प्लीमेंटेशन होते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में आप लोगों को पढ़ के आना पड़ेगा क्योंकि क्लास का थोड़ा टाइम हो रहा है, सो ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो भी होगी क्योंकि वो आपको देख के आनी है कि अरे के अंदर क्या होगी और लिंक लिस्ट के अंदर क्या होगी, राइट। अब हम देखेंगे कि स्टैक को क्यू के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, सो ये बहुत इंटरेस्टिंग ऑपरेशन है। हमारे पास एक स्टैक अवेलेबल है। अब जो हमको स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक तरीका हो गया अरे से इम्प्लीमेंट कर दो, दूसरा तरीका क्या हो गया कि लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट कर दो स्टैक को। अब आप किसी भी तरीके से करो, आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो अपन तीसरा तरीका निकाल के लाए लो कि क्यूज की मदद से हम स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है, राइट। तो इसको कैसे करेंगे अपन, एक एक करते देखते जाते हैं अपन कि स्टैक में अपनी क्या प्रॉपर्टी होती है कि अपन 5 को ऐड करेंगे, फिर क्या करेंगे 6 को ऐड करेंगे, फिर 7 को ऐड कर दिया, राइट। तीन एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। सबसे पहले क्या जाएगा 7 बाहर जाएगा, फिर 6 जाएगा, फिर 5 जाएगा। बट क्यू के अंदर क्या होगा 5 जाएगा, फिर 6 जाएगा, फिर 7 जाएगा। बट क्योंकि हमको क्यूज को इम्प्लीमेंट करना है किसकी मदद से, स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है किसकी मदद से, क्यूज की मदद से, तो क्यूज तो अपनी प्रॉपर्टी चेंज नहीं करेगा। सबसे पहले क्या बाहर जाएगा 5, फिर 6, फिर क्या जाएगा, फिर 7 बाहर जाएगा। बट मैं क्या चाहता हूँ पहले 7 जाए, फिर 6 जाए, फिर 5। मैं चाहता हूँ 7 पहले बाहर जाए, फिर 6 जाए, फिर 5 जाए। आई वॉन्ट कि सबसे पहले यहाँ पे 7 स्टोर हो, तो जब मैं पॉप करूंगा तो 7 बाहर जाएगा, यहाँ से फिर 6 जाएगा, फिर बाहर जाएगा 5। तो अगर इस तरीके से मेरे क्यू के अंदर एलिमेंट स्टोर होंगे, सो मेरे को जो चाहिए वो अचीव हो जाएगा, एकदम क्यू एकदम स्टैक की तरह काम करेगा। तो लेट्स सी अपन इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने मान लो 5 डाला, राइट। क्यू के अंदर भी मैंने 5 डाल दिया। अभी यहाँ पे मैंने 6 डाला। मैं चाहता हूँ कि कुछ इस तरीके से मेरा ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए, 6 पहले आ जाए, फिर 5 आ जाए। तो मैंने क्या करा 5 को बोला कि यार 2 मिनट जरा यहाँ पे रहेगा क्या Q2 के अंदर। सो 5 मूव टू Q2, राइट। 5 यहाँ से हट गया। नाउ आफ्टर 5 मूव टू Q2, 6 यहाँ से हमने NQ करवा लिया और 6 को मूव करके यहाँ पे लिया है। फिर 5 को बोला कि अब 6 तो आ गया तो तुम वापस आ जाओ, तो 5 आ गया और हमारा क्या अचीव हो गया 6 एंड 5। क्या Q2 ने हमारे एलिमेंट्स को रिवर्स कर दिया, 5 से 6 था तो क्या कर दिया उसको 6 से 5 कर दिया स्टोर। बट क्या Q2 ने सही में इस एलिमेंट्स को रिवर्स करा, देखते हैं इसको अपन नेक्स्ट ऑपरेशन के अंदर। हो गया हमारे पास क्या आ गया 5 था हमारे पास, फिर 6 था, स्टोर कैसे हो गया ये 6 आ गया, ये 5 आ गया। अब जब तुम Q2 के अंदर डालते हो एलिमेंट्स और Q2 से निकालते हो एलिमेंट्स, तो एक चीज क्लियर हो रही है क्या, मान लो ये ट्रेन की सबसे पहली बोगी है ना, सबसे पहले ट्रेन के आगे ये लगी हुई है और ये बाकी सारी बोगियां है। तो 6 यहाँ से स्टार्ट करा, स्टार्ट करके सारे एलिमेंट से ट्रेवल्स करा, वो घूम के वापस आ गया। जैसे यहाँ पे 6 पहले था, फिर 5 बाद में, घूम के वापस आए तो वो सेम पोजीशन पे आ गए। मतलब अगर हम 6 और 5 को ले जाएंगे Q2 में डालेंगे और Q2 से वापस लाएंगे, तो उनके ऑर्डर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो Q2 क्या कर रहा है एक्चुअली में, कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ कर रहा है स्टोर।
बट उसकी स्टोरिंग की मदद से हमको इतना बढ़िया फायदा हुआ कि हम रिवर्स कर दिया Q1 को हमने, और स्टैक ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। लेट्स सी कि 7 को ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे हम। 6 और 5 को यहाँ पे ले जाएंगे, यहाँ पे 6 लिख देंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे। उनको बोलेंगे कि 2 मिनट रुक जाओ तुम। क्यों रुक जाओ? क्योंकि हमको यहाँ पे चाहिए पहले 7, फिर 6, फिर 5। 7 हमारा टॉप पे है तो हमको सबसे पहले 7 को रिमूव करना है। तो 6 5 हमारे नीचे आ गया और 7 आ गया। 7 कहाँ स्टोर हो जाएगा? यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। एंड 5 6 मूव करके यहाँ पे आ जाएंगे वापस। एंड 6 एंड 5। ऐसा क्यों? क्योंकि 6 एंड 5 पहले से ही उस ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में हमको चाहिए। उस 7 को हमको 6 और 5 के आगे लाना है। तो 6 और 5 को बोला कि यहाँ पे रेस्ट करो, तब तक 7 आगे आ जाएगा, और उसके बाद फिर तुम्हारी बारी आने वाली है। इसी तरह से अपन 5 6 7 को डाल दिया। तो तुम देख रहे हो कि ये जो स्टैक के ऑपरेशन है, इसमें क्या चेंज करा अपन ने। स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में तुम देखो कि पुश करा। पुश करने के लिए अपने को O ऑफ n लगा। क्यों? क्योंकि इतने एलिमेंट्स अपन को Q1 से Q2 में ट्रांसफर करने पड़े, और वहां से अपन ने वापस ट्रांसफर करे Q1 के अंदर। तो क्या हो गया? O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। मतलब एक सिंपल से पुश ऑपरेशन के लिए हमको O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग गई। मतलब हमको ये चीज अगर इतना टाइम लेती है तो इसको इम्प्लीमेंट तो नहीं करना चाहिए, बट एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिससे पता चलता है कि क्यूज और स्टैक से आप कितना कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। राइट, उसके बाद क्या आ गया कि हमने 7 को ऐड करा, 7 को रिमूव कर दिया, फिर 6 को रिमूव कर दिया। तो 7 6 एंड 5 है। 7 को रिमूव करना है तो हम जैसे ही क्यूब में से अपन डीक्यू करते हैं वैसे ही करना है। 7 को हटा दिया। 6 को हटाना है तो 6 को हटा दिया। बट जब हमको 8 और 9 को ऐड करना है तो हमको इसको क्यू में डालना पड़ेगा, और फिर उसको रिवर्स ऑर्डर में ऐड कैसे करेंगे अपन। सारे एलिमेंट्स को हटा देंगे। हम क्या करेंगे? 7 भी हट गया हमारा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 आ जाएगा सबसे पहले, देन आ जाएगा 8, देन हमारा आ जाएगा 5। सो इस ऑर्डर में स्टोर हो जाएगा जब हम Q2 की हेल्प से स्टोर करने की कोशिश करेंगे। फिर हमको 9 को रिमूव करना है तो 9 को रिमूव कर लिया, फिर 8 को रिमूव करना है 8 को कर लिया। यहाँ पे कैसे होगा? 8 डाला, 9 डाला, फिर रिमूव करना है तो हमको 9 को रिमूव कर दिया हमने, और फिर 8 को भी रिमूव कर दिया। राइट, एट द एंड हमारे पास 5 बच गया। ठीक है। सो इस तरीके से अपन क्यूज की मदद से, दो क्यूज की मदद से एक स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब आप लोगों को अगर कुछ प्रैक्टिस करना हो तो आप ये कर सकते हो कि दो स्टैक की मदद से एक क्यू को कैसे इम्प्लीमेंट करें। राइट, ये एक चीज हो गई। और दूसरी चीज हो गई कि इनफिक्स ऑपरेशन से पोस्टफिक्स ऑपरेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, और पोस्टफिक्स ऑपरेशन, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एंड इनफिक्स टू प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। राइट, इनफिक्स टू प्रीफिक्स एंड इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। ये कैसे होता है स्टैक्स एंड क्यूज की मदद से, ये आपको देख के आना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस करा आज की क्लास में, और ये सारी चीजें आपको अभी घर जाके देखनी पड़ेगी। ठीक है, ये जब देखोगे तो इसका और अच्छा इम्प्लीमेंटेशन पता चलेगा कि आप जो एक्सप्रेशन है जिसमें आप बोलोगे कि 5 हो गया +2 हो गया इंटू 7 हो गया, इनमें से किसको पहले इम्प्लीमेंट करे, 5 को 5 + 2 करे या 2 × 7 करे। सो आपका कोड ये पूरा इम्प्लीमेंट करके देगा, वो अपना दिमाग लगाएगा और इस पूरे को एग्जीक्यूट करेगा, और आपको आंसर देगा कितना? 14 + 5 19 देगा आंसर। सो ये भी एक बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन है क्यूज और स्टैक का, तो आपको इसको भी देख के आना। राइट, सो आज के सेशन में हमने स्टैक्स एंड क्यू को कवर करा है। इसमें किसी को भी कुछ डाउट हो तो आप बता देना, और स्लाइड्स के अंदर जो एक दो एरर्स थी उसको भी मैं रिजॉल्व करके आज थोड़ी देर में आपको शीट्स भी शेयर कर दी जाएगी, स्लाइड भी शेयर कर दी जाएगी।
I want to thank the speaker for taking out time for us and creating such a nice presentation and clearing all our doubts. Thank you, sir, for being a part of a bootcamp. I appreciate all the attendees for being the part of the bootcamp. Don't forget to fill the feedback form and attempt the quiz in order to receive the completion certificate. So, thank you. Welcome.